Hello, good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Yes, guys, good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, and camera should be on, please. Ayushi, Kisan, Rajiv, Sandeep, Taniska, Vans, yes. Yes. Very good afternoon, everyone. Afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. Vatsal, how many students in this batch? Approximately 30. I'm not sure because there's not 30, full attendance 30. every time. Yeah, 30. Okay. Waiting for more students. Vatsal, Sir? yes, you are from which state? Sir, I'm from Haryana, Gurgaon. Haryana, Gurugram. Okay. Gurugram. Okay. Mohammad Fran. Sir, I am from Bilaspur, Chhattisgarh. Bilaspur, Chhattisgarh. Jitesh Kumar. Sir, I am from East Delhi. East Delhi. From where exactly East Delhi? I know each and every area. So West Vinod Nagar. West Vinodnagar. Okay. One of my friend is living in Vinodnagar. I don't know either east or west. Mehak Bharti. Sir, I belong to Jain Madhya Pradesh, but I am currently living in Delhi. Currently living in Delhi. Yes, sir, South X. South X. Right? Yes, sir. Okay. Siddhartha. Sir, I'm from Delhi. Delhi Dwarka. where? Delhi. In Delhi where, gentlemen? Sir, Dwarka. Sector Dwarka. 26. Okay. Smriti. जमशेदपुर झारखंड. Jamshedpur. Okay. Gopal Visnoi. सर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश. Sorry? सर मुरादाबाद. Muradabad. Okay. Muradabadi dal. Am I right, gentlemen? Taniska. The voice is not clear. Am I audible now? Not clear, ma'am. Sir, I'll put it in the chat box. Okay, ma'am. Once Sir, I am from Saharanpur. you are from? Saharanpur. Just a minute, yeah. Actually, I need to use my. Only 20 students joined so far. Okay. Yes, Taniska, can you speak now? Yes, sir. From where, ma'am? Sir, I'm from Delhi, Old Delhi. Okay. Once Yes, sir. you are from? Sir, I am from Saharanpur.
Okay, I think we need to start. Actually, I was waiting for more students to join us. So, students, myself, Dinesh Gupta, practicing certified financial planner. So, I completed my CFP in 2007. Since then, I've been taking classes of, IDWM, CFP, and MBA, BBA, and in corporates also, I've been conducting workshop, right? So, teaching experience, you won't believe, students, since 1994, I've been into teaching. 1994. वो बोलते हैं ना कि भाई एक्चुअली चलो अभी हम थोड़े से ना अलग टाइप के फैकल्टी हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ फैकल्टी यू विल रियलाइज स्लोली एंड ग्रेजुअली. राइट स्मृति, अभी एकदम से इनिशियली आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज व्हाट काइंड ऑफ फैकल्टी दिनेश गुप्ता इज, राइट? So teaching is my passion, you can say. Without teaching I can't survive. So on 10th May I completed 30 years of my teaching experience. Since 2001 students I've been dealing in financial instruments. So the topic which I have been assigned, that is personal financial management. I assure you, my dear students, you are not going to get bored in my class. That is 100% or 200% I am confident. Okay, so you will enjoy, rather you will enjoy my classes. Okay, is there any student who doesn't understand Hindi? Actually, in each and every batch, some students belong to Chennai, they are not comfortable in Hindi. In this batch, I think there must be 1 or 2, 3 students. Is there any student who can't understand Hindi? Can raise your hand? Can raise your hand. Otherwise, I'm sometimes I speak in Hindi. Chalega. This means everybody is comfortable in Hindi. Wonderful, guys. So in 2001, I started selling, insurance, post office schemes, general insurance, life insurance, both. Then later on, once I completed my CFP, I started, selling what? Mutual funds, and started constructing financial plans also. So you can say, practical experience I'm going to share with you. Practical, not theoretical. Whatever I have earned as a financial planner, that should be shared with you. So that's why my classes are, quite interesting also. Reason being, keep practical experience I'll share. You will not find in, any book. Right, guys? So what I need from you, so you should, if you are not able to speak, generally, students never unmute and speak, what I have experienced. So at least I'm looking at you guys, so you can say like this, yes, no. Is it okay? Or one student, please unmute, who is feeling there is no background, who is observing there is no background noise. 1 or 2 students, keep yourself unmute. I need voice also, otherwise I would feel I'm sharing my experience to non-living things. Agreed or not? So believe me, 30 years experience, and last 2.5 years almost online classes. I deliver offline classes also. MBA students or 2-3 different colleges, right? Around 70 students. So I really love to interact with students. When there is no voice coming from student side, I feel really bad. Believe me, I feel really bad. You can understand my situation, right? The person who has delivered face-to-face classes for last 27.5 years, or you can say 30 years. But when I take online, students generally keep themselves mute. Even if I say, have you understood? Nobody replies. Nobody. This is not good. Always when I deliver, I always keep myself at student face, student chair. And I consider myself, Dinesh Gupta is a Burbak type of student. Burbak, you must have understood stupid kind of,
not having, you know, sufficient mind, you can understand. समझिएगा. So that's why the way I deliver, I consider myself as a weak student. So if Dinesh Gupta understands, right, this means everyone can understand. So imagine how I am going to describe my topic. So is there any student who there is no background noise, can cooperate? If I say understood, is it okay? Can say yes, sir, no, sir. Is there any student? Yes, yes. I'm looking at everyone. I'm not looking at PPT. So we can No. unmute in between and we can answer, of course. Whenever I say, have you understood, Vatsal, you can say yes, sir, immediately. Sure, कभी sir. कभी आप सर्च करो यार किधर है अनम्यूट, उसको करने में ही टाइम लगा दो यार, दैट इज नॉट गुड, So हो राइट. जाएगा. स्पेस बार होता है ना, तो स्पेस बार से अनम्यूट हो जाता है. ऐसे भी गुरुग्राम भैया मेरे आसपास ही है, मेरा एरिया पड़ता है वो, ठीक है ना. अब पार्थ मस्ट बी थिंकिंग मेरा एरिया, मेरा बेटा इलाका है, ये ध्यान रखियो. सर आपसे पंगे और- कौन ले आपसे And पंगा कौन लेना students- चाहेगा? हेलो, I request yaar, look at my, you know, intention, not look at my words. Reason being, I consider myself, you know, a student. Try to understand, 20 years old. So kind of a person, how he is going to talk, try to understand. Okay. समझ गए ना what is the meaning of Dinesh Gupta? Or I never consider myself a teacher, I consider your friend, right? But I never, and you are not allowed to consider me your friend, okay? Kabhi, I'm sharing my, you know, very interesting, you know, experience in 2010, face-to-face classes, right? MBA students. So the same sentence I used, I consider you just like my friends, right? In second lecture, one student was sitting from behind. I, you know, मैंने उसको पीछे से मारा, मैंने बोला और भाई राहुल क्या हाल है? In third lecture, I was sitting, he came to me और मेरे को जोर से मारता, कहता और दिनेश क्या हाल है? Then I realized यार, तब मैंने सोचा यार, फिर then I started saying यार, I can consider you my friend, but I'll never allow you to consider my friends, right? So you can understand. So यार अपना है ना please, अपना relation रहेगा just like, you know, friends, okay? But I really need respect also. So don't look at, मतलब don't, you know, consider the words. मैं after some time वत्सल सीधा तू तड़ाक पे आ जाऊंगा. अभी आप है, just, you know, impression. Yes, आप and later on others क्या कर रहा है भाई तू? Is it okay यार? हाँ जी सर, चलेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल. जी If सर. anybody minds कि the way the sir is teaching, this is not good. So you please, you know, personally you can WhatsApp me. So I am not going to waste your time, guys. Actually, you know, I always want introduction from all the students, right? So here, just try, you note down my number, please. Save my number. Save my number. Save my number right now. There are 22 students. So listen to me, save my number and share with me. My name is Dinesh Gupta. Okay. Dinesh Gupta. सेव माई नंबर और मेरे को अपनी तारीफ कंटिन्यू कर दूं यार, ये बेटर है, ठीक है ना? आज ही तो मौका मिल रहा है अपनी तारीफ करने का, ठीक है ना वत्सल? तो भाई क्या चक्कर है, लकीली इन 2001 आई गॉट मैरिड, ओके? देन एक्चुअली व्हाट आई वांट a smile on your face, this is my purpose, right? 2021. क्लास बोरिंग हो यार, मजा नहीं आता. आर्यन, am I right? Yes, sir. क्या भाई, is it okay guys? Then Yes, sir. luckily got 2 kids, right? My elder son just you know, given final BTech exam, you know, he has, you know, given, and my younger son is appearing for first year BTech, right? Second semester. So luckily, and by God's grace, yeah, I don't have any liability, financial liability, right? I have my own house, everything, right? I have created some assets also. So this is a great achievement, believe me. Great achievement. At in 2006, I have my own house.
I purchase my own house. This is, financial planning. When I discuss the big goal is what? Own house. Yes or no, guys? If you are not living in your parents' house, sir, घर बनाना बहुत मुश्किल है. क्योंकि I've been managing portfolio of, many clients making financial plan. The most difficult was to have their own house, believe me. So you need to WhatsApp me, keep listening to me, your name, your batch, your city, date of birth, year you can miss. I don't require year. Actually, everybody knows, nobody wants to, share the age, and especially, who, right? So year you can miss, only date and month. Why I need this? Reason being, if in this month anybody has birthday, so he is going to throw a party, right? And party will be, online party, offline ni online. You can imagine यार online. राजीव सिंह, बेटे तेरा बर्थडे लग रहा है, तू जब भी बड़ा खुश नजर आ रहा है. नो सर, मेरे फ्रेंड का बर्थडे है जो अभी क्लास में है। अच्छा, जो क्लास में है उसका बर्थडे है, तो भैया पता चल जाएगा आप जब व्हाट्सएप करेंगे आप लोग. ठीक है किशन भाई. मिश्रा। हाँ, तो I need these information from each and every student. So please, okay. Now we are going to, financial planning is the most important subject. Believe me, the course in which you have enrolled, super. Take it seriously, I'm telling you. Take it seriously, guys. Because this course is going to give you job, and in job you will do better if you attend all the classes seriously. There is a great scope in financial planning, believe me. I have seen number of students in 1 year or 2 years double the salary, 100% increment, 100%, believe me, students. Got it? So obviously, how many hours you are going to spend? Try to understand, maybe 150 hours, right? Hardly 2 months course. If you are not serious, this means you are not serious about your career, believe me. You have to be very serious about the curriculum, and especially each and every subject. And my subject is based on numericals, right? Complete practical, and that will be required in other modules also. Kind of like retirement planning module, investment planning also, and risk analysis also. The calculation really matters. Okay, guys? So Yes, sir. very practical, as I told you, I'm going to discuss my, experience. The first slide, my topic is personal financial management, right? So I'm going to ask you very easy question, guys. Very easy question. This person is having money in his hand, right? Think, then reply. He is having how much? 60,000 rupees. This is my practical experience in 2007. 2007. So consider myself, consider Dinesh Gupta, your client sitting in front of you. Right, Vatsal? So check. And I'm going to ask you, where should I invest my money? Where should I invest my money? You need to tell me. Think, then reply. Don't be in a hurry. Don't be in a hurry, guys. सर ये डिपेंड करता है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म के लिए। Kishan Misra, turn on your camera. Thank you. Now 24 students. One by one, you need to reply. I'm naming you right. First, Prince Kumar, speak loudly. Actually, my earphone is not charged. Getting it charged, it will take 10-15 minutes more. So Prince Kumar, please.
Speak. सर ये डिपेंड करता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना, पहले हम ये कंफर्म करेंगे कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है या फिर शॉर्ट टर्म के लिए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं, करना चाहते हैं तो फिर Okay, Prince. I'm in front of you, gentlemen. Straightforward, talk to me. One question, please. सर आपको सर आपसे क्वेश्चन पूछना है। पूछो यार, पूछो। सर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है फिर शॉर्ट टर्म के लिए? चलेगा. Students, be practical. As I'm telling you, I'm sharing my experience. When you talk about long term or short term, what generally people replies? I'm telling you. प्रिंस भाई, ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्या होता है हमें तो पता ही नहीं है. डू यू अग्री गाइस? यार एक गर्दन ऐसे चाहिए मेरे को. प्लीज, आई एम लुकिंग एट एवरीवन. आई रिक्वेस्ट sir. एवरीवन. यार एक्चुअली व्हेन यू रेस्पॉन्ड, Yes, sir. each and every faculty consider the way I'm delivering, you are understanding. Try to understand. Please respond. Yes, Prince. Yeah, I don't know what is the meaning of this. Yeah, can you clarify it? यस सर. सर ये जो आपको 60,000 इन्वेस्ट करना है वो आपको 1 साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्ट करना है या 1 साल से कम? सर 1 साल से ज्यादा करना है. 1 साल से ज्यादा करना है. Now, yes, please tell me. सर तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा रिस्क ले करके या तो इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए या फिर इंडेक्स फंड में. चलेगा. ओवर. मिस्टर किशन मिश्रा, Yes, sir. speak loudly यार. Okay, आशीष कुमार. Hello. Yes, Kisan. जी sir. Sir, am I audible? Yes, audible, gentlemen. So, sir, as you said, you are looking for 1 year investment, like 1 year plan. So I would suggest you can invest your money in FD and as well as mutual funds and ETFs. Okay. Ashish Kumar. Sir, I'll in short term I'll suggest some trading Sir, short term, platforms. long term, I don't know, Ashish. I don't know what is the meaning of this. Sir, I'll suggest to if you want to take high risk, then you can invest in low ratings Sir, equity and straightforward, yeah, debentures. talk to me. Prince asked me, sir, short term, long term, then clarified. Now, what do you want? Yes, Ashish, yaar, speak up. Please don't Sir. hesitate. What is in your mind? Speak up, yaar. Don't think other would think what. यार पैसा दूसरे ने नहीं दिया है, तुम्हारे पेरेंट्स ने दिया है. Agreed or not? Yes, sir. Yes. Sir, I'll invest in equity and share market. Equity and share. Okay. Now, Yes. Mr. Vance. Sir, equity, bonds, Sandeep Kumar. mutual funds. Sir, equity and mutual funds. Yes. Dharna Bansal. Ma'am, how to pronounce? Sir, it's Dharna. Dharna. Okay, ma'am. Mutual funds and equity for long term. Very good, ma'am. Tanishka. Sir, I would also suggest that we should diversify our amount and we should invest in mutual funds and equity. Okay, others. Sir, I would suggest mutual funds and equity. Mutual as well. fund and equity. Okay, Parth. So can I just enact with you first of all, like the way others were enacting, or to just say straightforward that Whatever. where you want to invest? No. Yes. Repeat, Parth. What do you want? Can I interact with you like others were doing, or should I suggest the same thing? Yes, interact with me. Okay. So, sir, first of all, I just got to know that you want to invest in long term, that is more than 1 year. So Okay. please tell me that first of all, I would like to suggest you as a financial officer that please don't you put all the eggs in one basket. So if you want to invest for 1 year, then consider some of my options like mutual funds, sometimes FD as well. But Okay. because there's Okay, a lot okay, of Parth. risk. Yes. No reason. Not required any reason. Yes. The same equity and mutual funds. Okay, Vivek. Sir, equity and mutual fund. Jitesh.
सर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। ओके, मोहम्मद फरहान। Sir, can you tell me the specific purpose of your investing? I'll come back to you. Vineet. FDIs in equity. Okay, Siddharth. सर आप रिस्क ज्यादा लेना पसंद करेंगे जिसमें रिटर्न कम होगा, या रिस्क कम लेना पसंद है जिसमें रिटर्न कम होगा, पता अगर नहीं आप यार, एक साथ से ज्यादा? भैया हमने तो रिस्क और इश्क सुना था। रिस्क है तो इश्क है, इश्क है तो रिस्क है, तो ये समझ नहीं आया यार, ये इन्वेस्टमेंट में क्या रिस्क होता है यार। आप नहीं सर, समझ जो रहे हैं गाइस, व्हाट काइंड ऑफ फैकल्टी दिनेश गुप्ता, जस्ट टू मेक यू स्माइल। प्लीज, इसलिए मैंने बोला तो मेरे शब्दों को मत पकड़ना यार, मेरी इंटेंशन को पकड़ना। राइट, व्हाट इज माय इंटेंशन? टू डिलीवर यू राइट थिंग, बट थोड़ा सा स्माइल ऑन फेस, राइट? क्योंकि यंग गाइज आई नो यार, यू कैन अंडरस्टैंड। यहाँ पे कोई 40-50 ईयर्स ओल्ड होता है, सोचता है यार ये टीचर है क्या है, ये ऐसी ऐसी बातें करता है, यू नो। और यंग स्टूडेंट्स यार बिंदास हैं, दिस इज माय एक्सपीरियंस व्हेन आई डिलीवर टू बीबी एंड एमबीए और लाइक IDWM। मैं स्टूडेंट्स बड़े बिंदास होते हैं, मैंने ये चेक किया। वो मतलब नई सोच वाले होते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता क्या है, वो देखते हैं कि हमें समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। अग्रीड और नॉट गाइज? यस जी सिद्धार्थ, सर। बिल्कुल ठीक है यार, मेरे को समझ नहीं आया यार, ये क्या बात करता है। तो रिस्क के मतलब व्हाट डू यू मीन बाय सर रिस्क? एक्चुअली जैसे इक्विटी में हम अगर इन्वेस्ट करेंगे, तो अगर आप कम रिस्क लेना पसंद करेंगे तो हम ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे जिसमें एक रिटर्न थोड़ा सीधी कम बात है होगा। सिद्धार्थ, मेरे हार्ड एंड मनी है, बहुत मुश्किल से पैसा कमाया भैया, समझ तो रहे? सर इसको, यस सर, तो हाँ हाँ, सर हम बोल इसको भैया। ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे ताकि ये सेफली बढ़ता रहे। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है सर। अब सबकी सुन रहे हैं, हम जाके अपनी है ना धर्म पत्नी से डिस्कस जरूर करेंगे, समझ रहे हैं आप? और क्या होता है, माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस यार, मैं क्या कई बार इतना अच्छे तरीके से समझाता हूँ, फिर कहते हैं ठीक है भैया, होम मिनिस्ट्री से डिस्कस करके फिर बताएंगे। समझ रहे हैं, होम मिनिस्ट्री से डिस्कस करना जरूरी है। और धरना बंसल बिल्कुल अग्री कर रही है सर, ऐसे नहीं है, बगैर ऐसे नहीं मतलब डिसीजन लेने देंगे। राइट, ठीक है सिद्धार्थ, थैंक यू यार। कमिंग टू नरेंद्र। सर आपका उद्देश्य क्या है, मतलब कितने टाइम के लिए कितना क्या क्या बात है, क्या इतना बढ़िया वर्ड निकाल के लाया लड़का, मजा आ गया यार। नहीं यार नरेंद्र, इतना सब अच्छा शब्द निकाला है ना, मैं तेरे से बात नहीं करूंगा यार। नो, आई एम नॉट हैप्पी विद यू। स्मृति। Mutual fund and equity. ओके I मैम। will directly ask. हाँ बिल्कुल मैम, बिल्कुल। आर्यन। Sir, I would suggest you equity and real estate investment trust. ओके जेंटलमैन। आयुषी चंद्रा। Sir, I would suggest to invest in debt instruments and then इससे जो interest आता है, if you get अच्छा interest, so you can invest that in SIP, तो आपके returns बढ़ जाएंगे। ओके मैम, ओके। अक्षय। Sir, I would suggest to invest in equity and mutual funds. ओके गोपाल बिश्नोई। Sir, I would suggest you to invest in mutual funds and government securities. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ओके जेंटलमैन। महक। Sir, equity, mutual fund and SIP. SIP। ओके, वन इज लेफ्ट। वत्सल। सर थोड़ा थोड़ा करके डाइवर्सिफाई कीजिए, थोड़ा डेट में भी डालिए, थोड़ा इक्विटी में भी डालिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बड़े अच्छे आंसर दिए आप लोगों ने। और दो स्टूडेंट को हमने पसंद नहीं किया, एक मोहम्मद फरहान को पसंद नहीं किया, नरेंद्र को पसंद नहीं किया, हमने इनको बीच में ही रोक दिया, क्या बकवास बात करते हो यार। चलिएगा, मोहम्मद फरहान आपके पास आते हैं वापसी। Yes, sir. यस Sir, can you tell me the specific purpose of your investing? सर, मतलब क्या है आपको बेटी बेटी की स्टूडेंट्स, शादी करनी है या प्लीज कार? प्लीज लिसन लिसन, एक मिनट एक मिनट। ये दो स्टूडेंट को हमने क्यों रोका, क्योंकि ये दोनों का जो क्वेश्चन था ना वो बेटर था, आप समझिएगा। एंड प्लीज डोंट माइंड गाइस, अब धीरे धीरे देखते रहिएगा, पत्ते खुलेंगे। यस मोहम्मद फरहान, ये आपने बोला स्पेसिफिक पर्पस, यार मैंने ना बेटी की शादी करनी है। अच्छा, तो सर शादी आपको करनी ही है, मतलब आप रिस्क ज्यादा नहीं ले ना ना सकते। ना, करनी है भैया, करनी करनी है। तो देखा आप कैसे बोल रही है, करनी है, हाँ करनी है भाई। तो आप सर रिस्क ज्यादा नहीं ले सकते, तो आप इक्विटी पे तो बिल्कुल भी पैसा नहीं इन्वेस्ट करेंगे। ओके
एंड आप क्या कर सकते हैं, आप या तो डेट पे दे सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए डेट बहुत अच्छा है, पर ओके लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही ज्यादा खराब है, ओके और उसके रिटर्न्स भी ठीक ठाक हैं मतलब। तो चलो एक तो ठीक है आप मोहम्मद फरहान, यस यस यस, नाउ कमिंग टू नरेंद्र, शुरू करो वहीं से, बिल्कुल ठीक है, यू आर ऑन म्यूट। शादी उद्देश्य है हाँ आपकी बेटी उद्देश्य का। हमने बता दिया, अपना उद्देश्य बता दिया, बेटी की शादी। तो सर कितने टाइम में मतलब शादी आप कर रहे हो, मतलब कितने टाइम में करवा रहे वंडरफुल क्वेश्चन मोहम्मद फरहान, यू मिस्ड इट। यस सर। हाँ, the हो, best टाइम फ्रेम two क्या है? questions, Narendra, for you, right? What is the udesya? This means what is the aim? What is the purpose of investment? Right, guys? Do you agree, everyone? यार एक गर्दन yes और ऐसे ऐसे करो यार। I'm looking at everyone. मैंने बड़ी जी स्क्रीन पे डाल रखा है सबको। Please try to यस सर। understand. मेरे को आपको पीपीटी नजर आ रही होगी, दिनेश गुप्ता को नजर नहीं आ रही, आप समझिएगा। I love to interact with you. I love to see you guys. You just like my kid. Right, I'm going to complete 48 years of age, you are just my kid, and I told you my elder son completed almost BTech, you can imagine, right? So but still I want ki bhai, yes you should yaar have smile on your face, focus on Dinesh Gupta, right? As you know I'm थोड़ा बहुत स्मार्ट है हम, तो यार प्लीज थोड़ा सा स्माइल, एंड आयुषी मंद मंद मुस्कुराते हैं आप, हम ऑब्जर्व करते हैं सबको। ओके नरेंद्र, वंडरफुल क्वेश्चन यार। क्या दो क्वेश्चन थे, व्हाट इज द पर्पस, वेरी गुड यार। सेकंड इसने ये जो पूछा ना सर, बेटी की शादी कब करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। हमारे इंडिया में क्या हो रहा है दोस्तों, दूसरे की पॉकेट में माल देखा नहीं और शुरू कर दिया बताना भैया इधर लगा। क्यों, टारगेट होते हैं सबके, लेकिन आपका कोई टारगेट नहीं है अभी। आपने जो सोचा वो ठीक सोचा है, लेकिन व्हेन यू गेट इनटू द जॉब एवरीबॉडी हैज टारगेट्स, यस और नो? डू यू एग्री गाइस? जी If you have visited banks में क्या होता है, they have targets. Even in PSU banks they have targets. चलेगा नरेंद्र, दो क्वेश्चन आपने पूछे, दोनों का हमने जवाब दिया। हमारा उद्देश्य है बेटी की शादी, और कब करना है बेटी की शादी, आज से 5 साल बाद। नरेंद्र जी अब मेरे को सजेस्ट कीजिएगा। तो 5 साल है तो आप नहीं नरेंद्र जी, आप मेरे को ना सुझाव दीजिएगा, हमें भी सर आप हिंदी आती है बेटा, ध्यान रखिए। हाँ सर आप सब कुछ डाल देते हाँ, हैं, यस यस, अंतिम स्पीक उद्देश्य। अप यार। तो सर आप 5 साल के टाइम से ना मतलब बेटी की शादी, तो ये आई थिंक थोड़ा लॉन्ग टर्म है, तो आप म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं एक स्पेसिफिक। म्यूचुअल फंड में पैसे डाल सकते हैं, राइट? यस यस सर। चलिए म्यूचुअल फंड, तो कुछ आपने म्यूचुअल फंड की क्लासेस अटेंड की हैं? सर एक ही हुई है अभी। एक ही हुई है अभी, चलो कोई बात नहीं। सो म्यूचुअल फंड में पैसे डाल सकते हैं, ओके ओके। नाउ स्टूडेंट्स, यू ऑल हैव कम टू नो द टू क्वेश्चंस, व्हाट इज द time horizon, you can say time horizon, you have come to know that is 5 years, right? And what is the purpose of investing, that is for daughter's marriage. Can you change your answer now? You all are allowed to speak, no problem, one by one you can speak if you want to change your answer. Okay, Dharna, Rajiv and Ashish, any Mr. Vans, Hello, up to 4 anyone can speak. sir. I will suggest for fixed deposit. Fixed deposit, sure? Yes, sir. Yes, sir. Okay, any other student out of 4? Parth, Taniska, Kisan, Prince. Sir, I would still suggest to go for mutual funds, SIP, because उसका fixed percentage होता है, and then आपको during the time थोड़ा हो जाएगा, मतलब आपका इतना कि Okay, आपकी ma'am. daughter की wedding हो जाएगी। Okay, good, ma'am. Vineet, Jitesh, Yash, Sandeep. Sir, I think you can invest in real estate because it is a fast growing industry. So Okay, after Vineet. 5 years, you have sufficient term. Okay, good one. So, Jitesh, Yash, Sandeep, would you like to speak? सर स्टिल म्यूचुअल फंड और इक्विटी के साथ ही जाना चाहिए आपको। Okay.
Yes, sir, same. Mutual fund Same. SIP. Okay, okay. Ayushi, Aryan, Smriti, Narendra, Siddharth. Mutual fund and SIP. Sorry, mutual fund and equity. 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 Equity means you are talking about stocks, right? Equity means stocks. Sir, Okay. as the time limit has increased to 5 years, so equity will be a good option and SIP can be considered along. Okay, ma'am. Vatsal, Mehak, Akshay. Sir, divide your fund between equities and also real estate like REITs. These provide good yields and interest The rates. REITs, I don't think so, gentlemen. REITs are good, providing very good return. If you check for last 2-3 years, despite of boom in real estate nowadays in Delhi, Noida, Gurugram, and Vatsal, I think you belong to Gurugram, right? जी जी. There is a boom in Gurugram and Noida. Yes. Not in Delhi. Not in Delhi. Not in Delhi. I belong to Delhi. I have been observing there is not a kind of boom. People are moving from Delhi to Noida and Gurugram. Very congested or kind of people somewhere some people are not good. You can understand, please. I don't want to speak about this. I know the traffic jam and the facilities kind of things not clean. कहते हैं ना, Delhi capital, Delhi is the capital of India. It should be very clean. ये worst है if you compare with small cities of other states. So I've been living in Delhi and many of you must be living in Delhi. So अभी उस पे और I told you guys कि yes, you must have noted down my number. You need to WhatsApp me. Right now 24 students. I need 24 WhatsApp. Okay. So Vatsal is saying कि भाई diversify the portfolio, right, gentlemen? Parth, yes. सर बहुत से लोग कह रहे हैं कि दैट यू कैन इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट बट आई सजेस्ट यू कि दैट व्हाई डोंट यू कि आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर लीजिए साथ साथ Gold में. और Okay, और gold is. और हो सके तो अगर ज्यादा सेफ और खेलना है एंड इफ पॉसिबल क्यों ना फॉरेन करेंसी के अंदर भी डॉलर्स के अंदर चलेगा या गुड यार. पाउंड्स के मतलब अंदर यहाँ से ना व्हाई आई आस्क यू दिस क्वेश्चन जस्ट टू नो यार हाउ मच यू नो अबाउट फाइनेंशियल मार्केट. Try to understand the words you are saying. Mutual fund, equity, this means you have some idea. Now your forex, very good new word here. Try to understand gold investment, that is also new one. So you have some ideas, but guys, believe me, practical approach is something different as compared to bookish knowledge. I'm telling you. मैंने जिंदगी जी है यार, जिंदगी जी है. कैसे? इंटरेक्टिंग. मैं बहुत ही टॉकेटिव हूं. मैं इवन क्या है, अगर मैं क्या है कहीं पे जा रहा हूं, पहले जाते थे जैसे कि भाई रिक्शा से कहीं जा रहा है, रिक्शा वाले से पूछना शुरू कर दिया, क्योंकि एक होता ना कि एग्जैक्टली व्हाट दे थिंक. तो वो मैंने थिंकिंग जरूर नोट की है. ऑटो से गए तो ऑटो वाले से पूछा, कोई ऐसे ही खड़ा है ऐसे ही पूछ लिया. तो वहां से मेरे को ना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत सीखने को मिला है, बिलीव मी. और इंटरेक्टिंग विद ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर क्लाइंट. सो वो एक्सपीरियंस तुम्हारे लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा गाइस. मेरे पास बुकीज नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिकल है, तो वो बड़ी मतलब इट्स रियली गुड फॉर यू. ओनली वन स्टूडेंट हैज गिवन मी करेक्ट आंसर, बट आई एम टेलिंग यू थर्ड क्वेश्चन you should have asked me or already asked somebody, sir, risk appetite, how much risk you can take, yes or no? Who has asked me risk, how much risk? Then I told you your risk and risk. Yes, raise your hand सर यार, मैंने पूछा था. immediately ऐसे ही कर लो यार, ऐसे ऐसे करो यार. यार मैं सबको देख रहा हूँ. ओके, यस सिद्धार्थ, बिल्कुल ठीक है. तुम्हें पता चला दिस इज माई हार्ड अर्न मनी, राइट? आई डोंट वांट टू टेक रिस्क. सो still you people are investing my money in equity market, yes or no? Is there any guarantee or Vineet ki after 5 years you are talking about gold and all these things? Again, the fourth question you can say, you should have asked me, sir, how important 60,000 to you? Yes or no, guys? क्योंकि अगर मैं करोड़पति भी हूं तो तब भी काइंड ऑफ रिस्क आई डोंट वांट टू टेक. इंडिया में क्या हो रहा है? How many people are investing in mutual fund out of 142 crores? Hardly 5 to 6 crore people are investing. Are you getting, guys? 5 to 6. Only around 9
crore folio is being generated till now. And folio, you know, I have more than 20 folios, gentlemen. Different types of schemes I have opted, I've been investing. So folio, so that is, so I'm assuming around 5 crore people are investing. That's why in India, actually, you know, the people believe in what? Bank FDs. Am I right, guys? LIC, post office, they like investment in these instruments. Believe me, if you check your parents, चेक करना कितनी SIP चला रखी है म्यूचुअल फंड की. आपके बहुत सारे पेरेंट्स, मतलब जो हैं स्टूडेंट्स मेरे सामने 24, हार्डली 3-4 स्टूडेंट्स वुड से कि सर हमने क्या SIP चलाई हुई है डैडी ने काफी साल से. अभी रिसेंटली मत पकड़ना, फॉर लास्ट 1 or 2 years. Ask. They invested in mutual fund 10 years back, 15 years back. They would say, majority of the parents would say no, 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 no. क्या ले रखा है? LIC of India, right? चेक करना. अभी क्या है, I'm taking a batch, you know, recently, in which, you know, I'm talking about life insurance, general insurance. I have given them, you know, project, what kind of, you know, investment they have. So each and every students have shared with me in Excel, LIC of India, LIC of India, this plan LIC of India, this plan LIC of India. Everyone, I haven't got a single out of 48 students. Believe me, किसी के मेरे पास ऐसा पोर्टफोलियो नहीं आया जिसमें LIC ना. So the fourth question, guys, क्योंकि risk appetite, that is, you know, how much risk you can take. Many people, they don't know what kind of risk you are talking about. Yes or no? अपने आप से पूछो यार. मतलब क्या है, अपने आप को ना ज्यादा स्मार्ट करके हम बैठेंगे ना क्लास में तो लगेगा यार क्या बात कर रहे हो. एक है ना क्या बुर्बक टाइप बैठ के चलिएगा एक नॉर्मल बंदा, तो उससे पूछेगा रिस्क, वो कहेगा भैया ये रिस्क क्या होता है. अग्रीड और नॉट? मैं दूसरे तरीके से बढ़ा रहा हूँ यार, मैं प्रैक्टिकल अप्रोच कर रहा हूँ. मोर देन 90% पीपल इन इंडिया वो कहेंगे यार ये रिस्क क्या होता है, हमारी समझ ही नहीं आया यार. उसमें जैसे उसने बोला था इक्विटी में लगाएंगे तो पैसा लॉस में भी हो सकता है. दैट इज गुड सर. आपका पैसा अगर मैं थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न के चक्कर में 12-14% में लगाऊं तो गारंटी नहीं है. बट एक्सपीरियंस ये है फॉर लास्ट 4-5 years, ये हमने चेक किया, पॉजिटिव रिटर्न आती है, अच्छी रिटर्न आती है, बट गारंटी कुछ नहीं है सर. 2008 सब प्राइम क्राइसिस सुना है? सब प्राइम क्राइसिस जिसने नहीं सुना है ना, प्लीज यूट्यूब पे डालिएगा और फर्स्ट क्लास वीडियो निकल के आएंगी पिक्टोरियल वे में. 2008 सब प्राइम क्राइसिस ऐसी मंदी नहीं आई थी. लॉट ऑफ पीपल कमिटेड सुसाइड. पता ही नहीं है क्या हो रहा है. 20,000 से सेंसेक्स आ गया था 8,700. जस्ट इमेजिन. लॉट ऑफ पीपल, you know, lost their job, not able to earn the livelihood, and they committed suicide. Bread earner of the family. So now coming to fourth question, sir, how important this 60,000 to you? Tell me, ये 60,000 क्या इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में? अब मैं खुल के आऊंगा. सर पिछले 5 साल लगे हैं 60,000 रुपए जमा करने में भैया. बेटी की शादी करनी है, तुम दिनेश गुप्ता को ही क्यों कंसीडर कर रहे हो यार? दिनेश गुप्ता इज ए फैकल्टी काइंड ऑफ. दिमाग में कैसे आ गया आपको? कैसे आपने इक्विटी किया? क्या वो एक गरीब आदमी नहीं हो सकता है? आर यू गेटिंग गाइस और नॉट? आपको क्या पता 60,000 रुपीज में ही शादी करनी है? सर मैंने बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा किया है, शादी करूंगा 5 साल बाद. नाउ टेल मी, यू हैव गॉट एवरीथिंग, यू नीड टू स्पीक नाउ. yes please speak up यार. Sir, then gold is the best option for you. गोल्ड इज द बेस्ट यार. मोहम्मद फरहान समझ जरा, इतना गरीब आदमी वो गोल्ड खरीदेगा? बुरा मत मानियो. तेरे को लगता है वो गोल्ड खरीदने जाएगा? सर नहीं, मेरे को ये बता, 60,000 रुपए में शादी करनी है, क्या वो अपनी बेटी को गोल्ड भी दे पाएगा? क्या दे पाएगा? ना ये ना, ये क्या बोलते हैं, नोज पिन For the investment, यही दे पाएगा. तनिष्का, am I right? नोज पिन और ये दे पाएगा, और गोल्ड पॉलिश वाला एक हार दे देगा डुप्लीकेट.
बेटे इन्वेस्टमेंट गोल्ड ना समझ जरा, ज्वेलरी खरीदेगा तब मरेगा। सर मेकिंग मेकिंग चार्ज, अब उसको बेचने जाएगा तो खरीदार नहीं मिलेगा, कौन खरीदेगा? 20% का माइनस करके लेगा वो। गोल्ड इज द नथिंग यार, प्लीज गोल्ड में मत करिएगा अभी ऐसे। गोल्ड इज अ गुड अकाउंट में ही अप्रोच रहने दीजिए। यार, हमने कस्टमर टू कस्टमर देखना है, समझ जरा, कस्टमर टू कस्टमर हमने सजेस्ट करना है। गोल्ड इज गुड वन, तो यू कैन इन्वेस्ट, लेकिन यार 60 के 60,000 रुपए जमा करना, वो भी एक गरीब आदमी के, वो भी गोल्ड में, आई डोंट अग्री। एनी अदर स्टूडेंट? Sir, FDs. एफडी, ओके, डिफरेंट। इधर से एफडी किधर से बोला? हाथ खड़े करके बोलो यार। Sir, यस विनीत, ओके, एफडी, ओके, यस यस, तो स्पीकर पार्थ। फिक्स्ड एफडी पे बट फिक्स्ड रिटर्न मिलता है, लेकिन अगर हम म्यूचुअल फंड्स में जाते हैं और एसआईपी करते हैं तो एक पर्टिकुलर अमाउंट देनी पड़ती है और फिर वो मार्केट के हिसाब से थोड़ा फ्लक्चुएट बिल्कुल होता ठीक है रहता है। तनिष्का, मेरे को ये बताओ, चलो मेरा आप हेल्प करो, मेरे पास 60,000 रुपए, मैम लो पकड़ो 60,000 रुपए, नाउ यस सर। कैसे करेंगे आप बताओ? Sir, I would like to invest that money in mutual funds, SIP only. नहीं मैम, बच्चे समझो जरा, मैंने आपको 60,000, मैंने बोला मैम आई हैव 60,000 रुपीज, तनिष्का अब कैसे करेंगे एसआईपी में समझ नहीं पाया हूँ। मैंने तो 60,000 एक बार दूंगा मैम, एक बार दूंगा। सर तो इट्स अप टू मी कि पर्टिकुलर मंथ की डेट होती है, सपोजिंगली एवरी सेकेंड ऑफ एवरी मंथ, एंड देन उस पर्टिकुलर डेट पे हमें वो अमाउंट सबमिट करनी पड़ती है, एंड देन आफ्टर 3 years और आफ्टर 4 years फिर हमें वो नहीं मैं lump sum समझ में गया amount। तनिष्का जी, तनिष्का जी हम बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं आप क्या बोलते हैं। तो मेन तो पॉइंट ये है, आई एम गिविंग यू 60,000 लमसम, तो उसको कैसे चैनलाइज करेंगे वो समझ नहीं आ रहा है मेरे। एसआईपी तो हर महीने जाता मैम, तो कैसे करेंगे थोड़ा वो समझाइए। अगर मैंने तो 60,000 लमसम देना है आपको। यस एवरीबडी इज कंफर्टेबल इन हिंदी यार, थोड़ा सा बता दीजिएगा। ओके यस, तनिष्का बच्चे प्लीज स्पीक अप। बेटे एसआईपी आई अंडरस्टैंड, लेकिन मेरे पास आई हैव 60,000 रुपीज बच्चा, अब कैसे करेंगे एसआईपी, मैं समझा नहीं। यस पार्थ, सर ओके ओके, यस यस मैम स्पीक अप, पार्थ बाद में बोलेगा। no sir, actually once also want to speak, I am interested. चले यस पार्थ स्पीक अप। सर सबसे पहले तो आपकी गोल्ड की बात करूं, मैं ये नहीं कह रही कि आपको सिर्फ गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। अगर आप हाँ सेफ खेलना चाहते हैं और आपको 5 साल के अंदर बेटी की शादी करानी है तो सिर्फ आप सेफ खेलिए, गोल्ड में कर लीजिए, म्यूचुअल फंड में कर लीजिए, एसआईपी में कर लीजिए। और साथ साथ अगर हो सके थोड़ा पैसा, अब बस अगर बचे, अगर थोड़ा पैसा बचे स्पेंड ना करने के लिए, उसको आप फॉरेन में लगा दीजिए। और फॉरेन में लगाने की हमारी हमारी जिम्मेदारी है, नहीं उसको रिटर्न गारंटी ले आपको रहा, लिख देंगे। के देगा, स्टैम्प सर लिख पेपर के, पे लिख के देगा, सर लिख जवाब के दे। नहीं दे सकता, सर लिख अरे के नहीं यार दे सुनो सकता यार गाइज, ऐसे ही बोलते हैं बेटा लोग, सर। लोग अगर ऐसे बोलते हैं, समझ जरा भैया, गारंटी है। लेकिन सर म्यूचुअल फंड में जब गारंटी नहीं तो फिर फॉरेन की बात कैसे हम आप गारंटी ले सर सकते हैं? मैंने कहा बोला है कि म्यूचुअल फंड में पैसा गारंटीड है? मैंने कहा बट बोला कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ? बट कस्टमर सर, समझना यार, पार्ट समझ रहा है, तू बिल्कुल ठीक बोल रहा है, हाँ लेकिन बच्चे एडवाइस है ना सामने वाले को देख के देनी पड़ती है। डू यू अग्री गाइस? यस सर। ये नहीं कि 60,000 रुपए है तो आप डाइवर्सिफाई करेंगे पोर्टफोलियो, ऐसे गरीब आदमी का तू पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर दे तो मैं मान जाऊं। सर, मैं नहीं कहना चाहता, मैं कह रहा हूँ कि फॉरेन की बात, क्योंकि बहुत से लोगों को फॉरेन की बात नहीं है मुझे समझ में आती ना, बहुत से लोग फॉरेन की बात की पैसों में लगाना नहीं दैट्स ओके जानते हैं। यार, दैट्स ओके। मेरे Understand? को ये बता, जी कहाँ से बिलोंग करता है ये बता। सर, वैसे बिलोंग जम्मू से करता हूँ बट रहता नोएडा में। नोएडा में रहता, ठीक है। जम्मू का अगर एरिया थोड़ा सा गांव वाले एरिया में जाके तू किसी बंदे के, ऐसे ही बंदे के 60,000 को तू पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर देगा? बस इस बात का जवाब दो। आर यू क्या गेटिंग मुश्किल है गाइस? सर? बेटे बुक इज नॉलेज समथिंग डिफरेंट, अगेन आई वुड से, अगर तुम बुक में चेक करोगे ना 60,000 के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करेंगे वो, क्यों? 5 साल का टाइम होराइजन है उनके दिमाग में, समझे नहीं समझे गाइस? तो इस सब चीज, इस पूरे सिनेरियो को रियल लाइफ में अप्रोच में किस तरह से करा जा सकता है? क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज आपने कहा अलग है, बुकिश नॉलेज का अलग है। अगर सपोज कीजिए अगर आपके पास ऐसा क्लाइंट आए और हमारे जैसे मेरे पास स्टूडेंट हो। क्लाइंट बेटा, ये एक्चुअल में ही रियल केस आई एम डिस्कसिंग विद। अच्छा अच्छा अच्छा।
क्योंकि 2001 से मैंने डील किया था, तो 2007 का तो 6 साल का मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था। जब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है ना, तो बहुत चीजें आपको आ जाती हैं सर। कहते हैं ना, चेहरा देख के ही पता चल जाता है। जब व्हेन यू वांट टू परचेज सम अपैरल के लिए जाते हैं ना, गर्ल्स एंड बॉयज, वो सामने वाला सेल्समैन है ना, विद इन 2-3 मिनट्स कैन अंडरस्टैंड ऐसे ही टाइम पास करने आया है या खरीदने आया है। डू यू अग्री और नॉट? रियलिटी बता रहा हूं, दैट दिस पर्सन इज हैविंग एक्सपीरियंस, ही हैज इंटरेक्टेड नंबर ऑफ क्लाइंट्स, कस्टमर्स। इन द सेम मैनर क्या होता है जेंटलमैन, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से सीखने को मिलता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि भाई यस, आई एम गोइंग टू शेयर माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। You can't consider 60,000 for 5 years. Accordingly, you should start. No. Yes, Mehak. सर ऐसा भी तो हो सकता है, लाइक 60,000 तो अभी आपकी पुराने टर्म की सेविंग्स है। आपकी बेटी की शादी में होने में और आगे 5 नहीं साल करूंगा है, तो मैम। 60,000 मैंने एक ही बार देना मैम, उसी से शादी करनी है। मैंने दूसरे बच्चों के लिए भी जोड़ना है, मेरी 4-5 बेटियां हैं। तो सर फिर SIP। SIP यार, फिर मेरे को यही बताओ। ऐसे ही हमने उन मैम से पूछा था, तरिश्का से, यार SIP कैसे कराओगे? थोड़ा सा मैं भी जानना चाहता हूँ ना। सर मंथली इन्वेस्ट कर देंगे ना, लाइक 1,000 हर महीना चले जाएगा, तो 5 साल तक आपके अच्छा 60,000 जो है वो वेरी लग गुड जाएंगे। मैम। वो 60,000 रुपया मेरा क्या करेंगे आप? जो हम आपको देंगे मंथली तो देंगे, 60,000 का क्या करेंगे आप? आप हमें लमसम देंगे ना, तो ठीक। हम जो है मंथली डिपॉजिट करते जाएंगे, हमारे पास में ओके, लमसम पूरा अमाउंट रहेगा। वंडरफुल वंडरफुल मैम, सर सुपर। म्यूचुअल फंड में लमसम का ऑप्शन जो होता है वो वाला भी आता है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में। हाँ, हाँ जब ऐसा देखो ना, कर लो। हाँ बिल्कुल, मैं उसमें ऐप होता है वन टाइम या SIP, यस और नो, तो वन टाइम कर देंगे। यस, हाँ, यस, यस कमिंग सर। टू IUC। मैं थोड़े से मजे ले रहा हूँ यार, प्लीज डोंट माइंड, ठीक है ना, क्योंकि आज टुडे इज माय फर्स्ट लेक्चर यार, एंजॉय करने का टाइम है। यस IUC। यस सर, तो आपने बताया कि आपको रिस्क भी नहीं लेना है, बहुत ही हार्ड अर्न मनी है, 60,000 इधर उधर भी नहीं होना चाहिए। तो सेफेस्ट जो लोग कन्विंस हो जाते हैं, जिन पे उनको गारंटी होती है कि यहाँ पैसा नहीं डूबेगा, वो FD रहेगा। एंड FD पे जो इंटरेस्ट आएगा 5-6% अगर हम पर एनम भी लेके चले, तो उस इंटरेस्ट को हम वन टाइम म्यूचुअल फंड या SIP का देख सकते हैं। बट फॉर द सेफेस्ट टाइम बीइंग, और जितना कंसर्न मनी है कि इधर उधर नहीं होना चाहिए, उस हिसाब से FD ठीक है। एंड इंटरेस्ट को फिर हम कंपाउंड करने की कोशिश कर सकते हैं थ्रू SIP। इंटरेस्ट को कंपाउंड करूं तो SIP। यस सर। ओके, चलिएगा। प्रिंस कुमार। सर एक सिंगल सिक्योरिटी में डिपॉजिट करना है या फिर हम थोड़ा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं? भाई, तेरे को सलाह देनी है मुझे, तेरे सामने मैं सर बैठा अगर हूँ कस्टमर। अगर सर मुझे देनी हो तो सर मैं ये बोलूंगा कि आप जो, अगर आपको 5 साल बाद गारंटेड पैसे चाहिए, तो जो 50% है वो आप सेफेस्ट एसेट में डाल सकते हैं, जैसे कि गोल्ड में डाल सकते हैं, म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। और म्यूचुअल फंड में भी जो पर्टिकुलर ब्लू चिप्स कंपनीज हैं या फिर इंडेक्स फंड होते हैं, हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें हमारे गारंटेड तो नहीं है, गारंटेड तो कहीं पे भी नहीं होता, गारंटेड तो FD में भी नहीं होता, लेकिन सेफेस्ट में आता है। म्यूचुअल फंड में हमारा इंडेक्स फंड हो सकता है, और जो ब्लू चिप्स कंपनीज होती हैं वो, और उसके जो 25% है उसको, उसके हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और थोड़ा सा इक्विटी में डाल सकते हैं अच्छे रिटर्न के लिए। चलो ठीक है यार, मान लिया तुम्हारी बात, लेकिन क्या है, मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है, दो ही चीज नजर आती है, जो IUC ने बोला है और विनीत ने बोला है। बैंक FD इज द बेस्ट। आपको क्या है, क्लाइंट का क्या है, एग्जिस्टिंग चेक करना है यार, कि कितने 60,000 रुपए में जो बेटी की शादी कर रहे हैं, तुम्हें लगता है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स या फॉरेक्स वगैरह को समझ पाएगा? नो सर। आप ना प्रैक्टिकली करके देखना यार। कोई गरीब आदमी होना, उससे पूछ के देखना, भैया तुम्हारा पैसा उसमें लगा दे, सही है, रोहित शर्मा सही है, नया एड, बस वो नीचे जरूर पढ़ा देना। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। यस, ऑल द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। ये जरूर, इसका मीनिंग जरूर बता देना उस गरीब आदमी को, फिर आप उसका पैसा लगा के दिखाना म्यूचुअल फंड में, हम माने। सर बहुत ज्यादा
एफर्ट्स किए हुए लाइफ में 2001 से. It's not easy to convince the kind of people, even well-educated people, they don't understand this concept. Try to understand, yaar, they don't understand this mutual fund SIP even. What they ask me, sir, is there any guarantee? मैं कहता हूं सर देयर इज नो गारंटी. सर गारंटी नहीं है तो ऐसी जगह पैसा नहीं लगाएंगे. हम क्या करेंगे, रेकरिंग डिपॉजिट में लगा देंगे. पोस्ट ऑफिस का 5 इयर्स का रेकरिंग डिपॉजिट, बैंक का रेकरिंग डिपॉजिट लगा देंगे, एफडी में पैसा लगा देंगे, LIC में पैसा लगा देंगे. लेकिन भैया हमें गारंटी दे दीजिएगा. हमने सुना है ये शेयर मार्केट बड़ा ऊपर नीचे होता है. डू यू अग्री और नॉट? प्रैक्टिकली करिएगा तब रियलाइज होगा आपको. अगर आपके पेरेंट्स क्या है, ट्रेडिशनल इन्वेस्टर है, तो कन्विंस देम टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट. बोलना डैडी रिलायंस के शेयर्स खरीद लीजिएगा. देखो क्या रेस्पॉन्स आता है. जस्ट ऑब्जर्व. इफ दे हैव बीन इन्वेस्टिंग इन काइंड ऑफ ट्रेडिशनल प्लान्स, LIC, बैंक FDs type, just try to convince. Your parents must be educated, or many of you belong to good areas. Lekin those who belong to very small villages, try to convince them, then you will realize. So the best answer is what, my dear students? Only FD for these gentlemen. Only FD. If you Sir, invest in stock market, I'm telling you, gentlemen, let's say blue chip company, okay? India-China war is going to start. क्या ब्लू चिप कंपनी के शेयर्स गिरते नहीं है? टेल मी यार, मेरे को जवाब दो ना. जब इंडिया चाइना का वॉर होने वाला था कोविड टाइम में, मार्केट गिरी थी बुरी तरह. ये ब्लू चिप थे या कोई भी थे, सबके शेयर स्टॉक्स नीचे आ गए थे. स्टूडेंट्स, यस सर. हाँ, 2008 में चेक करना, सेंसेक्स ऑलमोस्ट 21,000 टच करने वाला था. विद इन 4-5 मंथ्स सेंसेक्स आ गया था 8700. क्या ब्लू चिप कंपनी के शेयर्स नहीं गिरेंगे? सर इट्स नॉट इजी. इतना पैनिक क्रिएट होता है. जब इंडिया चाइना कोविड का था ना, लोग इतने पैनिक हो गए थे, उन्होंने सबने क्या किया था, अपना रिडेम्पशन मारा था. म्यूचुअल फंड थे, स्टॉक्स थे, ये डर हो गया था भैया क्या होगा अगर वॉर हो गया तो फिर तो मार्केट बिल्कुल नीचे चली जाएगी. पैसा, लोगों की मेंटेलिटी, क्योंकि यार मेरे बहुत सारे क्लाइंट थे, आई नो, कितनों ने क्या है, इवन मैं भी डर गया था. मैं प्लानर हूं, मैं भी डर गया था. मैं यार ये मार्केट कहाँ थमेगी, लोगों के पास पैसे नहीं है, घर से निकल नहीं रहे हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो लोग क्या चाहते थे यार, पैसा कैश इन हैंड इज बेटर देन इन्वेस्टमेंट सिचुएशन. क्योंकि क्या है, until unless you give your client guarantee, he is not going to put his money. और देखिएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, 60,000 he is having on daughter's marriage. Last 5 years he could accumulate 60,000 only. Yes, Prince Parth. Prince, yes, speak. Prince. सर लेकिन ये 5 साल में मार्केट लगातार ही गिरे रहेगी, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं. बेटे एक बार गिरी ना, शुरू में ही गिरी, वो तेरे को गालियां बकेगा, ध्यान रखियो. इस बात का रियलिटी बताता हूं बेटा. हो सकता है तेरे को पीटने भी आ जाए, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं. इट्स हैपनिंग. मार्केट ऊपर होती है ना तो यस, तुसी ग्रेट हो प्रिंस भाई, मजा आ गया. क्यों? एप्स आर अवेलेबल, बार बार चेक करेगा. ग्रीन कलर, यस, 2000 इंक्रीज, 3000. जिस दिन रेड आया उसी दिन तेरे को गालियां बकेगा. समझा नहीं समझा? और 10 दिन तक मार्केट गिरती रही ना, फिर देख लियो जरा वो क्या ना, यू अंडरस्टूड? हाँ, यस पार्थ. सर आपने बताया कि वो जो गांव के वाले जो लोग होते हैं, रूरल एरिया के लोग होते हैं, जिनके पास नॉलेज वगैरह नहीं होती है और रिस्क भी लेना नहीं चाहते, जिनके पास जिनको गारंटी नाम की चीज नहीं होती, उनके लिए बेस्ट होता है FD. अब आपने एज एन इन्वेस्ट कर दिया 60,000 FD के अंदर, और FD के अंदर वो 60,000 5 साल बाद 60,000 ही रहे, तो उसमें कोई गलती किस बात की? मैं तो क्या है आपकी रिस्क की 5 साल के बाद 60,000 रहेगा, क्योंकि आप बात कर रहे हो इन्फ्लेशन की. जी.
ग्रेट। आपके जी दिमाग में इन्फ्लेशन बोल रहे हैं, आपको जी लगता है बहुत सारे लोग इन्फ्लेशन के बारे में सोचते हैं? ऑनेस्टली सर, टेल मी। बट सर मेरे पास जो क्लाइंट है वो तो इन्फ्लेशन की बात करी नहीं उन्होंने। तो अगर इन्फ्लेशन की बात करती फिर मैं शायद कुछ और बताता। अरे पार्थ बेटा, इन्फ्लेशन की बात करेगा ही नहीं इस टाइप का क्लाइंट। सर, वेल एजुकेटेड पर्सन दे टॉक अबाउट इन्फ्लेशन, यू एग्री और नॉट? यस सर। समझिएगा, वेल जी एजुकेटेड हैविंग फंड्स दे टॉक अबाउट इन्फ्लेशन. I guarantee, guys, more than 90% people, they don't talk about inflation. They look at the rate of interest only. बस सर वो पैसों रेट का ऑफ सबसे इंटरेस्ट को देखते हैं बस, इन्फ्लेशन नहीं आता उनके दिमाग में। बस सर पैसों का सबसे बड़ा दुश्मन तो खुद इन्फ्लेशन ही होता है ना। बिल्कुल अब बिल्कुल अब अग्री आप करता हूँ पार्थ, अब यू आप आर कहीं एब्सोल्युटली राइट। अब आप लेकिन कहीं भी यार ट्राई, अब समझ जरा, तुम है ना उसको लेके चल रहे हो, मैं क्लाइंट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ यार। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? सर आई अंडरस्टैंड, लेकिन सर आप ये भी समझिए ना, आप कहीं भी चले जाइए लाइफ में, कहीं ऐसी जगह है जहाँ रिस्क नहीं होगा? हर जगह क्यों रिस्क नहीं है है? सर, आप बताइए। क्यों नहीं है? क्यों बता, एफडी में क्या रिस्क है, जवाब दे। सर इन्फ्लेशन खुद है। अब मैं खुद नहीं इन्फ्लेशन, गारंटी देता, अरे सर यार बताइए। कमाल करता है। मैं तेरे से बार बार बोल रहा हूँ, मोर देन 90% पीपल दे आर नॉट कंसर्न अबाउट इन्फ्लेशन. दिस इज माई मोर देन 10,000 क्लाइंट्स आई एम हैविंग, आई अंडरस्टैंड दिस वन यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड. आप अपने नजरिए से सोच रहे हैं, आप अपने नजरिए से सोच रहे हैं, लोगों के नजरिए से नहीं सोच रहे हैं. आप एक बार इंटरेक्ट करके तो देखो ना, अगर आप क्या है टाउन में हो या रूरल एरिया में, बात करो जरा, इन्फ्लेशन को समझ ही नहीं आएगा. इन्फ्लेशन सिर्फ वो क्या चाहते हैं, मेरा पैसा इतना इन्वेस्ट हुआ, 5 साल बाद इतना मिल रहा है, दैट्स इट यार. दिस इज द फैक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट. तो क्या वो ये जान इन्फ्लेशन, हाँ बोल. क्या वो ये जानते हैं कि अगर आपने बोला कि आपको 60,000 चाहिए, अगर मैं पूछूं कि वो 60,000 इस 5 साल बाद कितने आपको बन के दिखाने हैं, बिल्कुल क्या मैं आपसे पूछूं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो जरूर पूछता है कि सर एफडी वेरी गुड ऑप्शन. तो ही इज गोइंग टू आस्क यू पार्थ कि भाई हाउ मच आई एम गोइंग टू रिसीव आफ्टर 5 years, यस और नो? जी मैंने बोला कि सर लगभग 1 लाख रुपया. प्रैक्टिकली आई एम टेलिंग यू, अब केस पे आ जाता हूँ. सो हम्म एक्चुअली ही वांटेड टू परचेज फ्रॉम मी LIC स्कीम, क्योंकि LIC प्लान लेने आया था सर. वन टाइम आई वांट टू पे, गिव मी 5 years प्लान. When I checked LIC, the return was coming around 75,000 only after 5 years. Try to understand. 60,000 and was giving him only 75, 78,000 short term, right? Then I have looked everything. Then I asked here, what is the goal? Your daughter's marriage. Then I told you, if you purchase LIC, LIC is giving you maximum 80,000 rupees, right? Are you happy? कहता है यार 80,000 तो कम है. So bank FD is the best option. So at that time, rate of interest was coming 9 point something, right? Bank FD. मैंने बोला यार करीबन अराउंड 1 लाख के आसपास मिलेगा. उसने कहा ठीक है यार, 1 लाख में मैं शादी कर दूंगा. क्या वो मेरे से पूछेगा सर इन्फ्लेशन कितना था, क्या होगा, कैसे, क्या? नेवर. In Delhi, I belong to a small village, gentleman, village area, right? आसपास मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं इन दैट पर्टिकुलर एरिया, दे आर नॉट कंसर्न अबाउट इन्फ्लेशन. इवन इन सिटी ऑल्सो, व्हेन यू सजेस्ट कि इन्वेस्ट इन दिस स्कीम आफ्टर दिस वन, most of the insurance company, they are giving you guaranteed return 7%. They are quite happy. Why? They are not concerned about inflation. Well educated people I have seen in my life, well educated people, they never consider inflation while investing. And you can speak to your parents here, check, they must be having LIC policy in their portfolio. Speak to them. प्रैक्टिकल करके देखो ना, मजा आएगा. प्रैक्टिकल करो, स्पीक टू देम. व्हाई दे इन्वेस्टेड इन LIC 6%, 7%, and what is the reason? सिक्योरिटी. वो बोलेंगे भैया LIC ऑफ इंडिया सरकारी कंपनी है, पीस ऑफ माइंड है, द कंपनी इज नॉट गोइंग टू बी फेल्ड, राइट? They know the rate of interest 6 to 7%, but they never have talked about inflation. मैं कहता हूँ यार छोड़ो यार दुनिया की, अपने पेरेंट्स से, नियर रिलेटिव से बात करके देखो ना, मजा तो तब आएगा ना. बोलना आसान है गाइस, लेकिन जब प्रैक्टिकली बात करते हैं ना, तभी मैंने बोला था कि मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा. ये बुक में नहीं लिखा. बुक में क्या लिखा होगा पता है पार्थ? डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, थिंक अबाउट इन्फ्लेशन. आई नो यार, मैंने बुक बनाई है, मैंने भी तो लिखा है, लेकिन साफ लिखा है कस्टमर टू कस्टमर इट वेरीज.
Yes or no? Customer to customer it varies यार. What kind of risk appetite? रिस्क एपिटाइट के साथ साथ हमें उसका चेक करना है बैकग्राउंड यार, कितना बंदा मतलब कितना पैसा उसके पास. अगर मार्केट गिरी ना भाई सुसाइड कर लेगा वो, ध्यान रखियो. तो बहुत तू रिस्की तू अभी काम है ये तो। तूने बेटा 2008 का फेज नहीं देखा, एक बार चेक कर लियो, यूट्यूब पे चेक कर लियो कितने लोगों ने सुसाइड किया था. जिसने क्लोजली चेक किया ना, कोई क्लोज फ्रेंड क्या है किसी का, क्या उसका जॉब छूटी है और वो ही वांटेड टू कमिट सुसाइड इन दैट सिनेरियो, तो वो ना गूज बम्स आ जाते हैं उस सिनेरियो को याद करके. इट्स नॉट इजी जेंटलमैन. कहते हैं मार्केट ऊपर जा रही होती है ना, यू फील वेरी गुड, और जब मार्केट क्रैश है ना, रात की नींद उड़ जाती है बेटा. और जो पैसा आपने पर्टिकुलर गोल के लिए रखा हुआ है, समझिएगा, टेंशन शुरू हो जाती है. मैं बेटी की शादी कैसे करूंगा, मेरा बेटा नेक्स्ट ईयर अमेरिका जाना है. हाई इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं मैं. 2 करोड़ चाहिए थे, अभी पोर्टफोलियो में 2 करोड़ थे, 1 करोड़ हो गया. मैं अपने बेटे को कैसे भेजूंगा अमेरिका हायर स्टडी के लिए. दिमाग परेशान हो जाता है बेटा. मार्केट अभी क्या है, तुम्हारे हार्ड अर्न मनी अभी लगे नहीं है मार्केट में, और अभी तुमने लूज नहीं किया है, फीलिंग नहीं आएगी. और मैं हमेशा क्या, आई कंसीडर माई सेल्फ इन्वेस्टर, और जब मार्केट गिरती है उसकी तरह फील करता हूं. अग्रीड. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि यार आई एम शेयरिंग माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. ये आपको नजर नहीं आएगा, चलेगा. अब व्हाट हैपेंड यार, आई एम टेलिंग यू. आई सजेस्टेड हिम कि यार गो टू बैंक एंड हैव अ बैंक एफडी. He asked me how much. मैंने कहा यार close to 1 lakh rupees you will get after 5 years, right? I asked in which bank you have saving account. So he asked, told me, sir, SBI. मैं go to SBI यार, and he went to SBI and next day he came to me happily. इवनिंग में मिलता है, उनका दिनेश भाई थैंक यू वेरी मच यार, तुम सच अच्छे आदमी हो. LIC नहीं किया क्योंकि LIC में आपको कमीशन होता, तब भी आपने मेरे को राइट सजेशन दिया. ठीक है ना, समझने की कोशिश करिएगा. LIC तो ऑब्वियसली मेरे को कमीशन देती, मैंने उसको सजेस्ट दिया बैंक में बैंक एफडी, तो मेरे को कोई कमीशन थोड़ी ना मिला. आर यू गेटिंग गाइस? तो मैं उस टाइम फाइनेंशियल प्लानर नहीं था, एक सिर्फ एक एडवाइजर था LIC का, समझिएगा. लेकिन मैं चाहता तो उसके पैसे पे कमीशन ले सकता था LIC देके, और आया भी वो LIC लेने था. तो मैंने हमेशा नीड बेस्ड सेलिंग की है, और उस CFP के बाद तो मैंने क्या है पर्टिकुलर बस क्लाइंट का ही वो देखा है, इंटरेस्ट क्लाइंट का फेवर से किया है. तो इन द इवनिंग मेरे को कहता दिनेश भाई थैंक यू वेरी मच, मजा आ गया. मैं वेरी चल थैंक यू यार, चल मानी तो सही तूने बात, लेकिन यार तेरी कैलकुलेशन में फर्क था. गांव का बंदा था, जानते थे हम एक दूसरे को, तू तड़ाक करके ही बोलते गांव में यार, आप थोड़ी ना चलता है. तो कहता यार तेरी कैलकुलेशन में फर्क था. मैं क्या क्या फर्क था? उसने कहा यार 1,20,000 बोला है उन्होंने, और तूने बोला 1 लाख. इसका मतलब कैलकुलेशन तेरी खराब थी. मैंने कहा बेटा फंस गया तू. मैंने क्या बोला सीधे ही, फंस गया तू. मैं क्यों फंस गया पूछता है. मैं जल्दी से, अच्छा तेरे को कुछ मिला है, उन्होंने कुछ दिया प्रूफ? हाँ हाँ दिया है भाई, दिया है. मैं देख उस पे क्या लिखा है, SBI ऊपर लिखा होगा, छोटे अक्षर में लिखा होगा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. यू गॉट माई पॉइंट? समझिएगा, वो बैंक की FD नहीं दी उसको, उसको लाइफ इंश्योरेंस का प्लान पेल दिया. आर यू गेटिंग गाइस? उसको क्या दे दिया, लाइफ इंश्योरेंस का प्लान बेच दिया, सिंगल प्रीमियम, वन टाइम इन्वेस्टमेंट. और विच प्लान? यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान बेस्ड ऑन मार्केट. मार्केट में पैसा, और मार्केट में पैसा कितना? 100%. बाद में मैंने चेक कराया, 100% पैसा शेयर मार्केट में. मैंने कहा बेटा ये शेयर मार्केट है, 1,20,000 भी हो सकता है और 30,000 भी हो सकता है, याद रखियो. और 1,20,000 क्या 1.5 lakhs भी हो सकता है आफ्टर 5 years. आई एम नॉट सेइंग ये, लेकिन नेगेटिव भी हो सकता है. कभी ऐसा ना हो बेटी की शादी करनी हो तो भैया कभी कोर्ट मैरिज ही करानी पड़ जाए तेरे को, सोच के चलिए जरा. तो लेकिन ब्लाइंड फेथ इन बैंक्स, व्हाट ही सेड टू मी, यार चल देखेंगे यार, मतलब ठीक है. समझिएगा गाइस, ही डिडंट रिलाई ऑन माय वर्ड्स, बिकॉज उसके दिमाग में क्या था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी बैंक जो है मेरे को चीट नहीं करेगा. यानी हम बेवकूफ है. समझिएगा गाइस, हम बेवकूफ हैं. फ्री की एडवाइस थी ना, फ्री की एडवाइस.
फ्री की एडवाइस कोई वैल्यू नहीं देता जेंटलमैन। उसने क्या करा, मैंने कहा जा बैंक मैनेजर के पास जा, 2-4 जना अच्छी अच्छी गालियां बकियो, आसानी से काम नहीं होता। जाते के साथ बिंदास अपनी हरियाणवी लैंग्वेज में तू बकियो और शोर मचा दियो, तेरे हाथ पैर जोड़ेगा वो, तेरे को क्या पैसे वापसी करेगा। नहीं गया, नो ठीक है ठीक है। व्हेन व्हाट हैपेंड गाइस, इन 2008 मार्केट क्रैश्ड, राइट। उसके दिमाग में तो था दिनेश ने कुछ बोला था। फिर उसने क्या करा, किसी को पकड़ा और उससे पूछा यार मेरी फंड वैल्यू एक बार देखियो यार, ये हमने कराया था बैंक से, क्या हाल है इसका। 29,000 फंड वैल्यू, समझ रहे गाइस। 60,000 रुपए का उसने किसी ने चेक करके बताया भैया तेरे 60,000 नहीं है, 29,000 रुपीज है। अब सोचिएगा क्या क्या गुजरा होगा उसके। लेकिन वो मेरे को बताया नहीं उसने अभी जब, लेकिन मेरे को कहीं से पता चल गया था। मन में सोचा, देख कितने लोग समझदार होते हैं, मिस्टेक करते हैं, कोई करेक्ट कराना चाहता है तब भी नहीं करते हैं। अग्रीड गाइस। सो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन वेयर एग्जैक्टली यू वांट टू इन्वेस्ट। तो इतना इजी नहीं है, इतना इजी नहीं है। यू विल लर्न स्लोली एंड ग्रेजुअली, आई एम टेलिंग यू। आप सोचें कि एकदम से होगा, क्योंकि क्या होगा, ऐसे भी क्लाइंट से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। घर जाके ना आप सोचेंगे यार आज तो दिमाग खराब हो गया, डिस्पाइट ऑफ एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग बट ही कुडंट अंडरस्टैंड। डेफिनेटली आप देखना जरा, मैं तो आपको बता रहा हूं पहले ही, इट्स नॉट इजी। तो प्रैक्टिकली अपने आप को तैयार रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। बहुत सारे हैं यार, मैं तो थोड़ा सा इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आपको रियलिटी दिखाऊं क्या हो रहा है। चल, यस पार्थ, स्पीक अप। Yes, sir. Yes. Where you want to invest 5 lakh rupees? राइट सर, 20 तो lakhs का सर मेरा पैकेज है। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पर्पस क्या है सबका? अब उसमें पर्पस बताइए कि क्या पर्पस है इसका, क्योंकि बिल्कुल हमेशा ठीक क्वेश्चन है नहीं यार, आता है। बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है, वही सेम कि यार मेरा हम्म, पर्पस है ना टू गेट मैक्सिमम रिटर्न। क्योंकि यार 5 लाख रुपए लगा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा लूं। कितना सर, कितना कोई एक्सपेक्टेड कोई रफ फिगर है जितना आपके पास? जितना जितना मर्जी दे दे यार, मैं आई एम हैप्पी। जब भी तो तेरे पास आया हूँ। यू आर आप एक्सपर्ट, आर यू। आपका रिस्क एपेटाइट कितना सर? रिस्क मेरे एपेटाइट को कितना पता है नहीं यार मतलब? रिस्क एपिटाइट क्या है, मेरे को नहीं पता। तो तो चल ओके, रिस्क नाउ एपेटाइट कमिंग टू मतलब नरेंद्र। नरेंद्र, सर आपको इन्वेस्ट करना है तो जैसे कि आपका पर्पस क्लियर है ना, तो मैं पूछना चाहूंगा कि आप मतलब कितना जोखिम ले सकते हो, मतलब आप कितना गाड़ी ले गाड़ी सकते हो, चलाते वक्त तो जोखिम लेता हूँ भैया मैं, 150 की बाकी स्पीड नहीं से ले चलाता सकते। हूँ अपनी कार। हाँ, तो मतलब आप ले सकते हैं, आपकी पर्टिकुलर मतलब एज क्या है, मैं मतलब ऐसा assume करता हूँ। एज है सर 25। 25, तो सर मतलब आप रिस्क ले सकते हैं, अच्छी खासी ले सकते हैं फिलहाल। आपको होल्ड करता हूं सर। क्या इससे पता चलता है कि मैं रिस्क ले सकता हूं? जो मैंने इनको बताया, स्टूडेंट्स यहाँ पे ना हम डिस्कस कर रहे हैं यार, बिल्कुल मन में जो चल रहा है बिंदास बोलिएगा। मैंने आपको क्या है, फ्रेंड माना है, तो आप मेरे को फ्रेंड मान के रिप्लाई करो, उसमें कुछ नहीं है। बस क्या है, थोड़ा सा ना रेस्पेक्ट रखिएगा, कभी वही तू तड़ाक वाला हिसाब तुम भी कर दो, ठीक है ना, वो मत करिएगा प्लीज। वर्चुअल क्लास है तो मार तो सकते नहीं पीछे से मेरे को। हाँ, मेरी बातों से क्या लगता है कि मैं रिस्क ले सकता हूँ संदीप? जैसे इसने नरेंद्र ने बोला कि सर फिर तो आप रिस्क ले सकते हैं। क्यों भाई? 150 किलोमीटर स्पीड से मैं कार चला रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है? दूसरा, मेरी उम्र 25 है, तो इसका मतलब क्या है? यही मतलब निकल के आएगा।
नहीं सर, एक बेसिक बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रोच यही कहती है कि अगर आपकी एज कम है तो आप एक इन्वेस्टमेंट सर, एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट तरफ जा अप्रोच सकते अलग हैं। हो सकती है, बिल्कुल संदीप, इन्वेस्टमेंट अप्रोच अलग है भाई, समझे नरेंद्र? हाँ, इस तरीके से नहीं जज कर सकते आप। सिद्धार्थ क्या बोलेगा? सर रिस्क का तो कुछ कह नहीं सकते, वो तो खुद ही बताएंगे क्या हिसाब हाँ, खुद है। मतलब बताएगा तो इसके यार अलावा मेरे से बात तो करो ना यार, मेरे को क्या पता रिस्क क्या, कैसा रिस्क है। हम तो ये बोल सकते हैं, हम क्या भैया 150 की स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, वहां रिस्क ले लेते हैं। तो वो उस टाइप से मैंने रिप्लाई यार मैं सच बता रहा हूँ, क्या बातें कर रहे हो तुम, ये रियल में ही मैंने फेस किया है, रियल में मेरे साथ हुआ है, तो सेम काइंड ऑफ रिप्लाई आई एम गिविंग यू। सोचिएगा यार, जो बंदा 23 साल से मार्केट में है, पता नहीं कैसे कैसे लोग मिले होंगे। यस और नो? बहुत सारे लड़कों की तो तुम जैसे, तुम्हारी तो उम्र भी नहीं हुई होगी यार। महक कुछ बोलेंगे आप? सर आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, मतलब आगे बिल्कुल ठीक है यार, ये 10-12 साल क्वेश्चन के लिए मिस या कर रहे हो अभी तुम। बस एक? बस 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 मैम, बिल्कुल ठीक पूछा आपने, अभी तक पूछा नहीं नरेंद्र तुमने। तुमने पिछली बार तो पूछ लिया था, क्या आपका उद्देश्य है, समझे? अब की बार किधर रह गए, क्यों हमारी सैलरी को देख के डर गए? आपने सर देखा थोड़ा मिस सैलरी आउट हो अच्छी जाता है, है। जरा लपेट लो क्लाइंट को। मार्केट का यही ट्रेंड, वो है ट्रेंड जेंटलमैन, ज्यादा पैसा नजर आया मार्केट में लोगों के पास, ओ भैया लगा दो जरा। रिस्क ले सकते हो आप तो सर, 25 साल के जवान लड़के हो, 20 लाख रुपए कमाते हो भैया, रिस्क ले सकते हो। क्यों भैया, हमारे चेहरे पे लिखा है, सच बता रहा हूँ, ये आपने सीखना है। और सच बता रहा हूँ, 2-4 महीने में सीख जाएंगे आप, जब आप एक्चुअल में क्लाइंट से इंटरेक्ट करते ना, तब रियल में पता चलता है। बुक पढ़ पढ़ के है ना भैया, नॉलेज होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती है, याद रखिएगा। क्यों महक, हमने सही बोला ना? जी सर। हम सही बोलते हैं मैडम, आप मानो ना मानो। सही पकड़ा महक आपने। कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं? मैडम क्या है, मैं चाहता हूँ 1-2 साल के लिए पैसा लगा। तो आपके लिए रिस्क, आप कितनी रिस्क बियर कर सकते हो? फिर वही मैम, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं आप क्या बोलते हैं, रिस्क बेयर कर सकते हैं। मतलब आप कितना पैसा डूब जाए आपको चलेगा? ओ मैडम कैसी बात करते हो, पैसा डूब जाए यार, कमाल है। आयुषी कैसी बात करती है लड़की, पैसा डूब जाए, ऐवी डूब जाए, फ्री का सर माल है आई क्या? सर मार्केट, सर सर आई थिंक महक पूछना चाह मार्केट रही है है। कि वो पैसा आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हाँ मतलब मैडम, बहुत पैसा ज्यादा पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे मत समझो, 20 लाख रुपए कमाता है दिनेश गुप्ता तो भैया पैसा डुबो दोगे, भैया पैसा नहीं डूबना चाहिए हमारा। सर लेकिन यही टाइम है ना कि आप अभी ज्यादा रिस्क बियर कर सकते हो, आप अपना मैं पोर्टफोलियो कर को लूंगा मैम डाइवर्सिफाई रिस्क, करके। मैं रिस्क नहीं नहीं मैम, रिस्क ले सकता हूँ, पैसा नहीं डूबना चाहिए। मैं बताता हूँ क्या हुआ था, क्योंकि आई बिलोंग टू ए स्मॉल विलेज राइट गाइस इन दिल्ली। सो वन ऑफ माय स्टूडेंट, he passed 12th class, and I used to give maths coaching and something. So one day this student met me in a temple, right? So he wanted to ask me कि सर मेरे को ऐसे पैसे लगाना है। So the same question मैं कि भाई यस, कि भाई आप ऐसी जगह लगाना पसंद करेंगे जहां पे पैसा डूब सकता है, ठीक है? और वो क्या था, वो लड़का जो था ना, बिलीव मी, ही इंडल्ज इन अ वेरी बैड कंपनी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, goons you can say, right? So he was having pistol at that moment. Then I have seen the pistol, यहाँ पे साइड में लगी थी, तो मेरे को इतना नहीं पता था ये किस लेवल पे पहुंच गया है। Then I realized if I invest his money इन काइंड ऑफ स्कीम्स वेयर ही लूज, मे भी हो सकता है टीचर का सम्मान ना करे, समझिएगा। तो मैंने कहा गो टू बैंक एंड परचेज बैंक एफडी। ये वही मैंने एग्जांपल यहाँ ठोक दिया। सो गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हेन द क्लाइंट सेज आई डोंट वांट टू लूज मनी, डिस्पाइट दैट ही इज सेइंग आई वांट टू अर्न वेरी गुड रिटर्न, माय इनकम इज 1 crore एनुअली, नेवर कंसीडर कि he is earning 1 crore in a year. Never. When he says
I don't want to lose money, don't take risk. Otherwise, you will be in risk. ये मार्केट का रूल है, याद रखिएगा गाइस. फिर ये ना जो तुम्हारे दिमाग में चलता है ना, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग और ये सब धरा का धरा रह जाएगा गाइस. If the client says, I don't want to lose my money, or time horizon 1, 2, 3, 4 years, try to understand. You do not suggest. You should not suggest. क्योंकि क्या है, जब मार्केट अच्छा चलती है तो वाह वाह दिनेश जी, वाह वाह दिनेश जी, और जब मार्केट क्रैश होती है तो लड़ाइयां भी होती हैं. सच बता रहा हूं, आपको अभी एक्सपीरियंस नहीं है. जब मार्केट गिर जाए और तुमने पहले ही बोल रखा है, तुम्हारे ऑफिस में जाके ठोक के जाएगा. डिपेंड करता है कैसा क्लाइंट है. रियलिटी हम बता रहे हैं आपको, ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है. मेरे बहुत सारे जो हैं फ्रेंड सर्कल, बहुत सारी कम्युनिटी है, वो शेयर करते हैं एक्सपीरियंस. यार मैंने अच्छा किया, 3 साल अच्छी रिटर्न आई, 4th ईयर में मार्केट गिरी, मारने आ गया. चलेगा. हु वाज रेजिंग हैंड? प्लीज प्लीज स्पीक टू मी यार. आज की क्लास क्या है, ऐसे ही है. हमने क्या, हम चाहते कि यू शुड स्पीक, आई शुड शेयर समथिंग. क्योंकि आपने भी क्या है, यू नीड टू इंटरेक्ट विद क्लाइंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड. यस जेंटलमैन. सर आपने बोला दैट यू आर नॉट अवेयर ऑफ योर रिस्क एपेटाइट और आप पैसा डुबाना तो नहीं चाहते. कैन आई बिल्कुल आस्क सर. यू, आपने पहले कभी इन्वेस्ट किया है कि नहीं किया? बिल्कुल, वेरी गुड क्वेश्चन गाइस. बिल्कुल सही क्वेश्चन है सर. मैंने ना, देखो मैंने कहाँ का पैसा लगाया है, एक बैंक एफडी में पैसा लगाया है, ठीक है, और LIC का स्कीम लिया हुआ है. दैट्स इट. पता चला वत्सल? इससे भी आइडिया हो गया ना मैं किस टाइप का बंदा हूँ. ये दैट बहुत मीन्स अच्छा क्वेश्चन है. जनरली वत्सल, यू आर एब्सोल्युटली राइट. हम क्या उसका करंट पोर्टफोलियो देखते हैं. करंट पोर्टफोलियो देखना बहुत जरूरी है. उससे हमें आइडिया हो जाता है कुछ कि एग्जैक्टली यार ये बंदा किस टाइप का है. यस यस वत्सल, यू कैन स्पीक. so दैट मीन्स आपको फिक्स इनकम पसंद है कि आपको यू नो वेयर योर मनी इज कमिंग फ्रॉम, आपको पता है कि आपको इस साल के एंड में इतना पैसा मिलेगा. बिल्कुल यार. और आपने कहा कि आपको अपना यू नीड द मैक्सिमम रिटर्न दैट यू कैन पॉसिबली गेट विदाउट लूजिंग मनी. सो सर अगेन शॉर्ट टर्म में तो इट्स बेस्ट कि आप डेट में इन्वेस्ट कीजिए, आप बॉन्ड्स लीजिए, आप G-Secs लीजिए, या फिर आप बिल्कुल, FD कराइए. एब्सोल्युटली करेक्ट वत्सल. दिस इज द वे आई एम गोइंग टू शेयर यार. ये अपनी है ना स्टडी एक साइड रख देना व्हेन यू इंटरेक्ट विद क्लाइंट. समझे नहीं समझे? उसमें क्या है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो डिपेंड करता है बंदे पर, सामने वाले वो किस टाइप का बंदा है, किस माइंडसेट का बंदा है. इवन इस टाइप का बंदा नोटोरियस टाइप हो ना, उसका पोर्टफोलियो मत बना देना रिस्की. बेशक वो बोले ना मेरे पास 5 साल का 8 साल का टाइम होराइजन है. सच बता रहा हूँ, अगर आपके आसपास कोई रहता हो और लगता है ये थोड़ा सा बदमाश टाइप का बंदा है और कहता 10 साल के लिए, 10 साल का भी रिस्की मत बना देना भैया. डाइवर्सिफिकेशन गया है, डाइवर्सिफिकेशन गया के बाद यू कैन फील, मतलब लैंग्वेज विच यू यूज आई ऑल्सो यूज यार. ना मैं कुछ नहीं बोलता हूँ यार, आप बोलते हो सर. क्योंकि क्या है, स्टूडेंट के सामने हम ऐसे बोलेंगे, आप बोलेंगे सर कैसे, लेकिन मार्केट की लैंग्वेज है यार. मार्केट में हम ऐसे ही बोलते हैं, सबको पता है. मैं कितना भी अच्छी फैकल्टी अपने आप को प्रूव करूं, जब है ना इंटरेक्ट विद फ्रेंड सर्कल, मार्केट की जो लैंग्वेज होती है ना, ऐसी होती है भाई. सबको पता है. घर में हम अच्छा बिहेव करते हैं और दोस्तों में जब बैठते हैं तो हर सेंटेंस में क्या निकल के आता है, एवरीबॉडी नोस. तो भैया क्या चक्कर है, इसलिए थोड़ा सा ना दिमाग में रखिएगा, सीखना सब कुछ है यार, लेकिन हमने दे चेक करना है सामने वाले का एटीट्यूड क्या है. यह सिद्धार्थ. सर जैसे रिस्क का क्वेश्चन था, रिस्क तो सर कोई भी नहीं लेना चाहता, तो उसको हम किस तरीके से समझाएं, कैसे क्या कन्विंस जवाब दें? करें? बिल्कुल जेंटलमैन. उसके लिए कुछ फैक्ट शीट होती है हमारे पास. जैसे आप बोलते हो ना म्यूचुअल फंड SIP, उसको ना फैक्ट शीट क्या दिखानी है कि भाई सर देखिएगा 2007 मार्केट गिरी नहीं थी, 2007 2008 में मार्केट गिरी. ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस. सर 2007 में वी वर थिंकिंग मार्केट इज डूइंग वेल. आई स्टिल रिमेंबर यार, इन 2007 one of my friend has borrowed money from the gray market at 2% per month interest, 2% per month interest, and he has invested in stock market. Try to understand. In 2008 January onwards market started falling. उसका पैसा डूब गया. He wanted to commit suicide. आप समझने की कोशिश करिएगा.
अब क्या है, अब समझना कैसे कन्विंस करें. If long-term investor and he says I don't want to take risk, what is your gentle बंदा है, not notorious type, try to understand, gentle है, okay. So how you are going to convince? Sir, 2007, let's say data you can fetch from the Google. 2007 in particular 5-6 funds he is going to invest monthly SIP, okay. 2008 market crashed. 5 years time horizon, if we see market up and down, still 10% return is generated. Market crashed even. Try to understand. Market crashed. आप ऐसे करिएगा 10 years का कोई भी last 10 years किसी भी time frame 2001 to 2010 और 2002 to 2012, any 10 years SIP, if you consider despite market up and down, more than 10% return generated. You just saw that. सिद्धार्थ, जब लोगों को समझ आता बात तो ठीक है. Then you have to explain when the market crash and you are a long term investor, then it is good for you. Good for you, sir. You are purchasing at a less matlab unit, mutual fund unit at less price you can avail. You need to explain. If still that person is not interested, don't try to compel. Don't try to compel. मैं सच बता रहा हूँ. लेकिन फैक्ट शीट होंगी आपके पास, एक समझदार बंदा समझ सकता है म्यूचुअल फंड की SIP को. ऐसा कुछ नहीं है. और उसको ना पहले ही बोलना पड़ेगा सिद्धार्थ कि सर मार्केट गिरेगी तो लॉस भी हो सकता है. इस बात के लिए तैयार रहिएगा. अगर इस बात के लिए तैयार है तो म्यूचुअल फंड की SIP में आइएगा. आप देखिएगा सर धोनी और ये जो इतने बड़े स्टार हैं ये ऐड ऐसे ही नहीं कर रहे हैं. आप कोई भी 10 साल की रिटर्न पकड़ लीजिएगा, उसके सामने फैक्ट शीट रखिए ना कुछ, तब उसको समझ आएगा. और क्या होता है पोर्टफोलियो ऑलवेज क्या करते हैं स्मृति, हम क्या करते हैं, लेट से 10 साल बाद मैंने अपनी बेटी की शादी करनी है, तो हमने क्या करते हैं बच्चे, 2-3 साल पहले ही हम पोर्टफोलियो को रीजिक करना शुरू कर देते हैं. इक्विटी से निकाल के हम डेट में डालना शुरू कर देते हैं. कभी ऐसा ना हो बेटी की शादी आने वाली है 1 साल के बाद और मार्केट गिर जाए. आर यू गेटिंग गाइस? When the goal is approaching, we are shifting equity to debt. This is very much required. You cannot continue with equity till your goal. Never. This is the stupidity. If 10 years time horizon, 7 years, 6 years, keep on investing in SIP, in equity mutual fund, right? Later on, you just shift from equity to debt as per the risk appetite of a client. और धीरे धीरे क्या इक्विटी एक्सपोजर कम करते रहिएगा, डेट एक्सपोजर ज्यादा करते रहिएगा. Lot of things you are going to learn in this program, believe me, if you are serious. And believe me, what my feeling is that this batch is comparatively, मेरे अब क्या हम बैच बहुत अच्छे आने लग गए हैं स्टूडेंट्स. व्हाट मतलब मैं कॉम्प्लीमेंट दूंगा अपनी मतलब टीम को जो मतलब रिक्रूट कर रहे हैं. तो वेरी गुड स्टूडेंट्स आर कमिंग, वेरी गुड स्टूडेंट्स. April batch, then June batch recently, 2 batches of June, far better than मतलब Jan, Feb, March. June I was feeling कि yes very good batches, लेकिन यहाँ मेरे को थोड़ा सा the way you people are talking to me, believe me this one is the best batch. What I feel today मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि some students they have complete zero knowledge or even they don't try to understand. And sometimes मैंने ये ऑब्जर्व किया despite of explaining again and again some important topics, they were not able to understand. I don't know what is the reason. And many of the students belong to very kind of areas where actually there is no electricity kind of things. They always face problem, internet connectivity issue. Then they always say sir internet connectivity issue, this one that one, sometimes miss the class. But today I am feeling yes कि भाई देखिएगा एक टीचर है ना जज कर लेता है, लेकिन अभी क्या है फर्स्ट लेक्चर है. व्हेन आई स्टार्ट telling you something and if you grab it and you start replying me, then I'll tell you कि what exactly मतलब this batch is, believe me. लेकिन आज मेरे को फीलिंग आया है कि ये this batch will be the best. और जो मेरी ऑब्जर्वेशन होती है ना, we always discuss each and every faculty what is this batch, कैसा लगता है. तो जून बैच की सबने तारीफ की है. We have 2 batches. So मेरे को लगता है कि जुलाई बैच is going to be the best batch. वो ऑब्जर्व हर फैकल्टी कर लेगा विद इन
3-4 क्लासेस, विद इन 3-4 क्लासेस, क्योंकि फैकल्टी मतलब बड़ा स्मार्ट होता है, वो अच्छे तरीके से जज कर सकता है। और मैं सबसे स्मार्ट हूँ, इवन क्या है, मेरे को गॉड ने एक ऐसी सेंस दे रखी है, कैसी, अगर आप कुछ गलत भी सोच रहे हैं अबाउट मी तो मेरे को पता चल जाता है। सो बी पॉजिटिव अबाउट मी। चलिएगा। ओके पार्थ, सो कमिंग टू नेक्स्ट गाइस। पीपीटी आपको नजर आ गई है, मैं आपको कवर कर लेता हूँ। एक्चुअली आई लव टू सी यू गाइस। सो ये थर्ड सिचुएशन मैंने क्रिएट की है, क्योंकि जो टीचिंग होगी मैं कल करेंगे, हम कल करेंगे। आज क्या है, मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपसे। अब क्या, कंसीडर योर सेल्फ, जो ये सूट बूट में बैठा है, कंसीडर योर सेल्फ, राइट? कंसीडर योर सेल्फ अ फाइनेंशियल एडवाइजर, और यू कैन से फाइनेंशियल प्लानर, विनीत, राइट? And in my class there is a rule, everybody have to switch on camera. If they are not turning on camera after 1 or 2 warning in my first or second class, I'll remove my student. So I'm really sorry for this, क्योंकि my experience is that when the student turn off camera, he is busy with someone, means mobile or something. So I always remove the students. This is my weakness and please accept it. क्योंकि इफ यू आर लुकिंग हेयर एंड देयर, आई ऑलवेज लुक एट यू, एंड मैं जब भी आपको बोलता हूं, जैसे विनीत, राइट? विनीत कुछ ऐसे कर रहा था तो मैंने ऑब्जर्व किया, तो बेटा लुक एट द पीपीटी, लिसन टू मी। एंड समटाइम्स व्हाट हैपन कि भाई आप क्या है, देख तो मुझे रहे हैं एंड ईयरबड्स लगा हुआ है एंड यू आर टॉकिंग टू समबडी ऑन फोन, इमीडिएटली मेरे को पता चल जाता है गाइस। वंशिका चौहान, कैमरा इज नॉट ऑन मैम। And if you have genuine problem, you can, write in chat box that this is a genuine problem, internet connectivity issue or something, guest in my matlab home, then can be accepted easily. But you should be, matlab honest about your genuine reason. So now consider yourself this, gentleman as a financial advisor, right? And this couple is right now not in your office, not in your office. The couple is outside the door. Yes, role play we are doing. Nokia, tuck tuck, old style, not bell, tuck tuck. Yes, your job starts now. Others, कैमरा ऑफ मत करियो बेटा, others, ठीक है ना? Yes, others, speak up. युवराज सिंह, you joined us late or camera on late? युवराज सिंह joined late. Joined late. Okay gentlemen, ऐसे ही वर्ल्ड कप जीत के आए हो तो आपसे तो पंगा लेंगे नहीं आज के दिन, ठीक है ना? तो कल की क्लास में हम आपसे पंगा ले लेंगे सर, ठीक है? इफ यू ज्वाइन अस लेट तो यू आर गोइंग टू सफर। यस, अदर्स, कैन यू टेल मी व्हाट यू आर गोइंग टू डू? कपल, मी एंड माय वाइफ इज एट द डोर। स्पीक अप यार, क्या करेगा सर भाई? कैन पूछना क्या, दोबारा आप बोलूं? क्या पूछें? जी जी जी। अच्छा, क्या पूछना चाहते हैं आप? ऑफिस में बैठे हो, हाँ सूट जी वूट पहन के बैठे हो, स्मार्ट लड़का है, ठीक है ना? जी। स्मार्ट तो हम भी हैं एक्चुअल में, लेकिन यहाँ पे थोड़े से हम बूढ़े हो गए हैं। चलिएगा, मैं और मेरी वाइफ क्या है, नोकिया। अब क्या करेगा बेटा? सर पूछूंगा कि मैं आपको कैसे कंसल्ट कर सकता हूँ। अच्छा, चलिएगा। जी। How may I धारणा, assist you? ना ना ना, जिससे पूछूं वही बोलेगा भैया, ऐसे थोड़ी ना। धारणा बंसल, Yes, sir. नहीं स्पेक्स में अच्छी लग रही है मैम आप। थैंक यू तो बोल I दो। asked the first thing, how may I नो नो, assist? थैंक यू, थैंक यू तो बोलना चाहिए ना मैम। Thank you, thank you. इट्स ओके, यस प्लीज। Sir, अब how देखो, may हमने थोड़ा सा मजाक किया, तुम्हारे चेहरे पे स्माइल आया, और क्या चाहिए यार? यस यस, धारणा बंसल। how may I assist you? ओके मैम, ओके। किशन मिश्रा, Sir, first of all, great. ओके। प्रिंस कुमार, Sir, how may I help you?
Okay. Hi, Taniska. Yeah, so firstly, I'll just greet you and be like, please, sir, come in and have a tea or have Okay, water, okay, and okay. then Good, good, good. and then I'll Good, good, मैम. and then I'll Good, ask बहुत नहीं नहीं मैम इतना नहीं पूछना हमने आपसे. विवेक. Sir, firstly, I will greet you and ask you to have a seat. Oh, thank you, sir. Yes, Ashish Kumar. Sir, I'll ask the same. Please Okay, have seat. once. Sir, please take your seat. Then I will ask them, how may I assist you, sir? Very good, gentlemen. Ayushi, Chandra. Sir, the same, like I'll greet you and will ask you to have a seat, and then I'll ask Absolutely. how Same, may I I think. Any other answer? Any other answer if you want to speak? Anyone सर here? हाथ मिलाएंगे सर सबसे पहले तो जाके अच्छा. Then दरवाजा खोलेंगे, हाथ मिलाएंगे, राइट? प्लीज कम इनसाइड. हाथ तो मिल गया बेटा, अब आगे चल. Ask for tea. अरे वाह, वंश बिल्कुल ठीक है यार, बिल्कुल ठीक है. कहते हैं ना, वो होता है ना, बकरे को पहले हलाल करने से पहले खिलाया जाता है. सही बात. मजाक है सर, बिस्किट भी मजाक खिला है. दो थोड़े. बिल्कुल ठीक है बेटा, बिस्किट भी बढ़िया वाले हैं, ऐसे ही नहीं पार्ले जी रख देगा. ठीक है ना. हाँ चल यार. सो गुड वन यार गाइस. क्या है देखिएगा, यू नीड टू ग्रीट, दैट्स ओके, बट फर्स्ट ऑफ ऑल you need to ask me what water without asking if office boy must be having, right? He is going to bring water instantly, and after that you can ask, sir, would you like to have tea or coffee or some juice or something. This is a good way, sir. I'm telling you, you cannot ask straightforward, how can I help you? Parth, am I right? Okay, Parth wants हाँ to speak. सर, अगर मैं डोर स्टेप पे आया तो पूछ सकता हूँ कि आपको 2 मिनट के लिए तंग कर सकता हूँ या नहीं, या फिर अगर आप ऑफिस में आए तो पूछूंगा कि सर बताइए कैसे सेवा कर सकता हूँ. ये इम्पोर्टेंट है. नहीं, जो देखो, आपके ऑफिस में कोई बंदा चल के नॉक कर रहा है, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड. जी जी आप तो उसको वेलकम तो करना ही पड़ेगा. जी सर. कोई देखिएगा मांगने वाला ना हो, बस ये ध्यान रखिए. यू गॉट माई पॉइंट. नॉक करके, अरे यार मतलब उस पे कुछ दे दो यार, भगवान के नाम पे कुछ ऐसे कुछ बोल सकता है. समझ अगर हाँ, तो समझिएगा उसका वेलकम तो देखो करना ही पड़ेगा. कोई जेन्युइन पर्सन आ रहा है, उसके बाद टी कॉफी जरूर ऑफर करना चाहिए. जी सर. हाँ, फिर क्वेश्चन ये बन सकता है कि हाउ मे आई हेल्प यू सर, मैम. बड़े सोफेस्टिकेटेडली आपने बात करनी होती है गाइस. चेहरे पे स्माइल, चेहरे पे स्माइल जरूर रख के, बड़े शुरू में बहुत ही जेन्युइन वे से आपको यू नीड टू स्पीक. क्योंकि द द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, एवरीबॉडी नोज. स्कूल कॉलेजेस में व्हेन यू हैव रिटन द एग्जाम, तो शुरू के 2-3 क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे लिखते थे, तुम मेरे को पता है. बीच में तो सलमान खान की स्टोरी भी डाल देते थे हिस्ट्री के पेपर में, राइट? हाँ, टीचर यही बोलता है ना, शुरू के बढ़िया लिख दो यार, और क्वेश्चन को लेंथी बना दो एसएसटी में, और बीच में ना कोई भी डाल दो. पूछ रहा बाबर का, लगा दो अकबर का. एवरीबॉडी नोज. तो भैया फर्स्ट इंप्रेशन बड़ा क्या है, इंपॉर्टेंट है. तो वहीं से ही क्या है, जज करना है सामने वाले को कि हाउ यू आर एफिशिएंट, यस और नो. तो उसमें क्या है, यू कैन आस्क कि भाई यस सर, और थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दे सकते हैं. सर जरूर आपको किसी ने सजेस्ट किया होगा या कैसे भी. सो आई एम दिनेश गुप्ता, प्रैक्टिसिंग सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर. तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में बात कर लेता हूँ सर, फिर आपके बारे में बात कर लेंगे. समझे नहीं समझे? तो वहां पे थोड़ा सा एक फीलिंग आती है. क्या होता है दोस्तों, मार्केट में ना अपने आप को बेचना होता है. एक वर्ड में देखो, मैं मार्केट की बातें कर रहा हूँ. अगर और कोई फैकल्टी ऐसे बात नहीं करेगी आपसे, आई गारंटी. मैं पहले बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या है, मैं आई कंसीडर दैट कि आई एम योर फ्रेंड. तो फ्रेंड लैंग्वेज से ही हम सीख रहे हैं. क्या होता है, अपने आप को बेचना होता है. एंड स्टूडेंट्स, व्हेन यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू, आप समझिएगा उस टाइम क्या करते हैं, आप अपनी स्किल्स को नहीं बेच रहे होते हैं. यस और नो? क्या प्रूव करना चाहते हैं इंटरव्यूअर के सामने? आई एम द बेस्ट कैंडिडेट. यस, गिव मी ऑफर, एंड यू विल हैव टू गिव मी ऑफर इफ आई एम द बेस्ट. तो अपनी स्किल्स आप उसके सामने शो करते हैं, वेल सूटेड द वे, बड़े कॉशियस होते हैं व्हेन यू स्पीक.
तो भैया यहाँ पर भी क्या है, यू हैव टू प्रूव दैट यू आर द बेस्ट पर्सन, यू आर द राइट पर्सन फॉर द कपल। तो पहले सर मैं अपने बारे में बता देता हूँ, आपको थोड़ा आइडिया होगा ही, मैं एक फाइनेंशियल प्लानर हूँ। और क्या होता है कि कुछ फाइनेंशियल प्लान होते हैं डमी फाइनेंशियल प्लान। डमी फाइनेंशियल प्लान मींस यू हैव अ हार्ड कॉपी। और क्या हो गया आजकल, थोड़ा सा टसन मारने के लिए क्या है, आईफोन क्या बोलते हैं उसको, मैकबुक बोलते, क्या बोलते हैं एप्पल की, मैकबुक सर। हाँ मैकबुक। सो मैकबुक रखते हैं जानबूझ के, सॉफ्टवेयर होता है वहां पर दिखाते हैं कि सर मैं फाइनेंशियल प्लानर हूँ और ऐसे ऐसे मैं क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो फाइनेंशियल प्लान करता हूँ, तो एक डमी फाइनेंशियल प्लान उस पर दिखा सकते हैं। तो वहां पे थोड़ा सा इंप्रेशन पड़ता है। आजकल यही तो हो गया, व्हेन यू गो फॉर प्रॉपर्टी परचेजिंग, तो बंदा क्या करता है, लैपटॉप लेके नहीं बताता है, यस और नो। और कोई किसी रेस्टोरेंट में या कहीं पे भी, मतलब मान लीजिएगा आप किसमें काइंड ऑफ मेंबरशिप, क्लब मेंबरशिप समथिंग लाइक दैट, वो लैपटॉप लेके बैठता है कि सर दिस इज व्हाट। तो थोड़ा सा, तो दिस मीन्स यार फर्स्ट मीटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू आर गोइंग टू प्रूव दैट आई एम द बेस्ट, यही तो प्रूव करना होता है। तो ये फर्स्ट मीटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस इन फाइनेंशियल प्लानिंग, इफ यू आर लर्निंग फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फर्स्ट स्टेप क्या बोलते हैं उसको, स्टैब्लिशिंग क्लाइंट प्लानर रिलेशनशिप, बिल्डिंग ट्रस्ट। अगर आपकी फर्स्ट मीटिंग सक्सेसफुल है तो दिस मींस दिस पर्सन इज गोइंग टू बी योर क्लाइंट। और फर्स्ट मीटिंग क्यों इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा बिजनेस लेना उससे। अगर आपने उसको इंप्रेस नहीं किया ना, तो वो बंदा क्या करेगा, दूसरे के पास जाएगा, सीधी बात है। तो उसमें क्या है, एक डमी फाइनेंशियल प्लान क्या करता है, आपकी हेल्प करता है। तो उसके लिए आई एम टेलिंग यू, कुछ थोड़ा होमवर्क है गाइस, एक बार लिख लीजिएगा, ओपन नोटबुक एंड टेक पेन। in my class please you have to be very serious because complete practical hai, theoretical is very less. So first homework you can write, that is dummy financial plan. आप ऐसे डाल दीजिएगा गूगल पे, फाइनेंशियल प्लान ऑफ एन इंडिविजुअल, सैंपल फाइनेंशियल प्लान ऐसे भी डाल देंगे, आ जाएगा, डोंट वरी, सैंपल फाइनेंशियल प्लान। एंड एक्सक्यूज मी, यू वर टॉकिंग अबाउट रिस्क एपिटाइट, आप बोल रहे थे ना सर, हाउ मच रिस्क यू कैन टेक, बोला था ना किसी ने। और जनरली स्ट्रेट फॉरवर्ड यू आस्क कि हाउ मच रिस्क, आई कांट से दिस मच दैट मच, क्या कैन आई से लाइक दिस, नो ना सर। वन डायरेक्टली ये ऐसे नहीं पता चलेगा कि हाउ मच रिस्क द पर्सन कैन टेक, आई एम टेलिंग यू। सेकंड क्वेश्चन प्लीज राइट डाउन, सेकंड क्वेश्चन लिखिएगा, इफ यू आर सीरियस so I am giving you homework, if you later on not serious I will never give you homework. Second is what, risk appetite questionnaire, क्वेश्चन लिख के questionnaire, क्वेश्चंस होते हैं ना क्वेश्चंस, रिस्क एपिटाइट क्वेश्चनेयर लिखेंगे, गूगल पे आ जाएगा, क्योंकि गूगल देवता नोज एवरीथिंग। रिस्क एपिटाइट क्वेश्चनेयर डाल दीजिएगा, तो आपके सामने ना लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आ जाएंगे, पीडीएफ और समथिंग यू विल फाइंड। तो वहां पर यू पीपल आर गोइंग टू आस्क 10 to 20 क्वेश्चंस, आप क्लाइंट से 10 to 20 क्वेश्चंस पूछेंगे एंड ऑप्शंस आर गिवन ए बी सी डी and he is going to opt out of for one option. Accordingly scores are given, if he has opted A option so how much score he has got. As per the score then you will come to know exactly how much risk the person can take. Agreed or not? Now coming back to this role play, this means first step you are going to discuss a lot, and if the client agrees, yes, you are the person who can manage my portfolio and taking care of my financial goals, everything. So now first meeting successful, and you have told ki how much I am going to charge, what are your duties, what are my duties. Okay, in first meeting you need to discuss everything, remuneration also, कि सर मैं फाइनेंशियल प्लान आपका बनाऊंगा, आई विल चार्ज दिस मच, 20,000 30,000 whatever. Okay, and he agrees. What will be the next step, guys? Client impressed,
Client impressed. Ready to give me 30,000 rupees for constructing a financial plan. Client agrees. Next. Next step, anyone? Anyone can speak. Anyone can speak. Prince Kumar and Sandeep Kumar. Prince and Sandeep. I need camera should be on, please. Rajiv Singh. And honestly, students, if I find tomorrow, आज मैंने कुछ नहीं बोल रहा हूं मैं. Until unless you tell me your genuine reason, I'll remove you. If Rajiv and Sandeep not replying, okay, now they have turned on camera. I know sometimes you receive a call and you are busy, then your camera off. This is not acceptable. This is not acceptable. Yes, guys, what will be the second step? आदर्श का चेक करिएगा, अपने आप को अनम्यूट किया हुआ है और प्रेजेंट नहीं है. अब आया ये. सर नहीं पानी. ये यू वर नॉट इन फ्रंट ऑफ मी गाइज एंड और आपका आदर्श कैमरा मतलब स्पीकर ऑन था जेंटलमैन, बैकग्राउंड नॉइज आ रही थी. हाँ, इट्स ओके जेंटलमैन, मतलब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा. नो प्रॉब्लम यार, आई एम विद यू. मैं बोल दिया कि यू कैन कंसीडर मी योर फ्रेंड यार, बिल्कुल बिंदास. जो भी आपकी प्रॉब्लम है यू कैन डिस्कस विद मी. मेरा मेन इंटेंशन है कि आपको ट्रेंड कर दूं मैं, बिलीव मी. मेरा कोई भी क्या है, मैं मतलब क्या है, देख पार्थ, मैं तू तड़ाक पे आ जाता हूँ प्लीज यार. मैं पहले ही सब लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको किसी को बुरा लगे ना, वो मेरे को व्हाट्सएप कर देना यार. लेकिन गर्ल्स ऑलवेज रेस्पेक्टेड. मैं गर्ल्स को कभी भी है ना तू तड़ाक नहीं कर सकता. आई रियली रेस्पेक्ट. तुम बॉयज को तो यार दोस्त हैं, आपस में कैसे बात करते हैं एवरीबडी नोज, राइट. और आजकल तो गर्ल्स एंड बॉयज भी कॉलेज में कैसी बातें करते हैं, तू तड़ाक चीज चलता है सब जगह, कोई आप नहीं करता. लेकिन हम कॉलेज में थे तब भी आप ही बोला हमने तो फीमेल को, चलेगा. सो कुल मिला के ये है गाइज, थोड़ा सा मतलब कंसंट्रेट करिएगा. देखिएगा मैं आपको ना थोड़ा अपना बच्चे की तरह मानता हूँ. अगर मेरा बच्चा कोई कोर्स करने जा रहा है, सोचिएगा जिसके बेस पे एक जॉब मिलना है, तो मैं यही तो चाहूंगा बच्चा करे बहुत अच्छा, और 1 या 2 साल में उसका पैकेज डबल हो जाए, तो और क्या चाहिए. यस और नो गाइस. बड़ा पोटेंशियल है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ आपको. दोज हु आर सीरियस अबाउट देयर प्रोफेशन, जो भी आपका है, सच बता रहा हूँ, 5 लाख को 10 लाख में होने में टाइम नहीं लगता. ये मेरे काफी स्टूडेंट्स का क्या है फीडबैक है. कहते हैं सर जितना मेरा सैलरी है ना, उससे ना 3 टाइम्स तो मेरा इंसेंटिव है. 3 टाइम्स इंसेंटिव है. आई एम डूइंग रियली गुड. मेरा बॉस भी बोलता है यार अगर तेरे को जब भी छुट्टी चाहिए ना ले लियो, बट यू हैव टू बी परफॉर्मर. यू हैव टू बी परफॉर्मर. और क्या होता है याद रखिएगा गाइस, सेल्स एंड मार्केटिंग एक ऐसी जॉब है जहां पर क्या फ्रीडम है. इफ यू आर रियली गुड, सो देयर इज अ फ्रीडम. काइंड ऑफ फ्रीडम आई टेल यू लेटर ऑन. लेकिन क्या है, सेल्स एंड मार्केटिंग आपकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, सच बता रहा हूं, कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी है, नॉलेज बहुत अच्छी है, यू कैन कन्विंस पीपल. क्योंकि हमारे इंडिया में है ना, लोगों के पास बहुत पैसा है, बट उनको ये नहीं पता पैसा कहाँ लगाए और कैसे लगा. डू यू अग्री और ना, कहाँ से हमें रिटर्न अच्छी आएगी. अपने घर से ही शुरुआत करके देखो यार. हमारा जो पोर्टफोलियो होगा ना पेरेंट्स का, वो कहीं ना कहीं है ना बैंक्स में होगा, इंश्योरेंस में होगा. नॉलेज थी नहीं. अगर हमारे पेरेंट्स को या आपके पेरेंट्स को भी कोई नॉलेज देता अच्छे तरीके से कि भाई डैडी ऐसे ऐसे लगाना चाहिए था, ऐसी रिटर्न आती, बताओ इतना फर्क पड़ता पैसों में, तो ठीक नहीं था, तो क्या पता हमारे पेरेंट्स भी लगा देते यार. तो इसलिए एक अच्छे समझदार आदमी की जरूरत है लोगों को. अगर आप क्या है आधी नॉलेज अपने पास रखेंगे ना, फिर क्या सामने वाला आपको ही बेवकूफ बना देगा. नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए. हार्डली यार 2 मंथ्स का कोर्स होगा, प्लीज चेक. 2 months and 2.5 months. After that, you will be placed, right? I think internship, and then you will start getting very good salary. And if you really do well, believe me, with 1 year later, you will find this unbelievable, unbelievable. You can't expect. Market trend क्या है 10% increment. I say 100%, but you have to prove your worth. कंपनी को क्या चाहिए,
सॉलिड बंदा चाहिए, सच बता रहा हूं मैं, कोई भी कंपनी है, सॉलिड बंदा चाहिए दैट कैन इम्प्रेस एनीवन। और इम्प्रेस वही करता है जेंटलमैन दोज हु आर हैविंग नॉलेज फाइनेंशियल मार्केट में। और नॉलेज के लिए यार कुछ नहीं, हमारा कोर्स जो चल रहा है उसको फोकस करिएगा और थोड़ा सा क्या है और भी रिसर्च करते रहिएगा। चलिएगा, नाउ कमिंग टू सेकेंड स्टेप इज व्हाट, डेटा कलेक्शन एंड गोल सेटिंग। डू यू अग्री? क्या करना पड़ेगा यार, मेरे को डेटा तो चाहिए ना क्लाइंट का। क्यों फरहान, सारा क्या डेटा गैदर करूंगा सर, पूरा इनकम एक्सपेंसेस एवरीथिंग सारा करूंगा और गोल्स भी पूछूंगा, तभी तो वर्कआउट करूंगा तेरे पोर्टफोलियो पर। यानी आई नीड कंप्लीट डेटा फ्रॉम यू सर। थर्ड टास्क प्लीज राइट डाउन, थर्ड टास्क। The third task is what? Data collection form. Data collection form for personal financial planning. Please try to spend 2-3 hours on my homework. Believe me. The first financing, what was the आगे क्या था? कौन सा अभी जो बोला है? हाँ जी, डेटा कलेक्शन फॉर्म। Data collection form, FORM form for personal financial planning. फाइनेंसिंग केयर। Personal financial planning. Financial planning. Okay. So 3 tasks I have given you guys. Try to actually new generation, young generation, they are very smart in surfing. Everybody knows, right? I'm not tech savvy. Right now there is some problem in my Excel. I'm not going to open Excel sheet. My son, younger son, is coming today from the hostel. I'm waiting for him. Try to understand. He will do all kind of stuff. He is very expert in this. So you people are also expert. तो गूगल सर्फिंग जो है सर्फिंग कीजिएगा एंड आई हैव गिवन यू 3 टास्क, ट्राई टू स्पेंड। और उसको क्या है अच्छे तरीके से देखिएगा। जो थर्ड टास्क दिया है डेटा कलेक्शन फॉर्म, अराउंड 5 to 6 पेजेस माय डियर स्टूडेंट्स। मतलब आप हैरान हो जाएंगे, कमाल है यार, सारी चीजें पूछ रहा है प्लानर, हर चीज पूछ रहा है। अपने आप को फील करिएगा एंड ट्राई टू डिस्कस विद योर वो इंफॉर्मेशन अपने फादर से लेके दिखाओ तो मैं मानू। जिसके पास प्रिंटर है ना उसको प्रिंट कर लो। मैं बता रहा हूं आपको, प्रैक्टिकली सीखना है। प्रिंट करके ना बैठ जाओ अपने डैडी के पास या अपने मैरिड ब्रदर और सिस्टर के पास, मत बैठो, फोन कर लो अगर दूर रहते हैं। आप लेके दिखा दो, मैं मान जाऊं। इट्स नॉट इजी। स्मृति डैडी कहेंगे अच्छा तू ये पूछना चाहती है, ये पता करना चाहती है मेरी सैलरी कितनी है, मेरा पोर्टफोलियो कितना है, मेरे पैसे मेरे पास कितने पैसे हैं। और लड़कों को तो कोई देगा ही नहीं, फादर कहेगा अच्छा बेटा ये देखना चाहता है डैडी के पास कितना पैसा है। दिस इज एक्सपीरियंस यार। फॉर लास्ट मेनी इयर्स माय स्टूडेंट्स आर सेइंग द सेम, डैडी ने सर बताया नहीं। ये साधु, अच्छा तू कल का लड़का मुझे समझाएगा, काइंड ऑफ वर्ड्स। क्योंकि आप धीरे धीरे समझेंगे तो फिर आप कहेंगे डैडी ये आपने सही नहीं कर ले रखा। LIC की पॉलिसी आपने सर 20 साल की ले ली, बताओ अब देखना रिटर्न कितनी आएगी, 6% रिटर्न आएगी, इन्फ्लेशन भी बीट नहीं होगा। राइट पार्थ? पार्थ तो पीछे पड़ जाएगा अपने डैडी के, जैसे मेरे पीछे पड़ गया था ये। सर वो बताएंगे नहीं, डंडा हो रहेगा। अब देख लेना बेटा, अपने डैडी को कहियो ना डैडी आप इन्फ्लेशन, कमाल है आपने इन्फ्लेशन के बारे में नहीं सोचा। एक लगेगा तेरे को, ध्यान रखियो बेटा। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं मार्केट में, जैसे तू पीछे पड़ गया था ना इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन, क्लाइंट के साथ करके देखियो जब पता चलेगा तेरे को। सो गाइस डेटा कलेक्शन फॉर्म को फिल करके देखिएगा, मजा आएगा। जिसके घर में या आसपास कोई प्रिंटिंग मतलब है, कोई प्रिंटर वगैरह है तो प्रिंट करके देखो यार। और चीज प्रिंट मत करो, बेसिक इसको प्रिंट करके ना आप डिस्कस करना। सच बता रहा हूँ बड़ा मजा आएगा। चेक तो करो ना। पेरेंट्स के बोलना कि डैडी आई एम लर्निंग फाइनेंशियल प्लानिंग, तो टीचर ने क्या है एक असाइनमेंट दिया है, डैडी ये तो पूरा करना पड़ेगा, देखो जरा फील होता है नहीं होता है। आधा फील होगा, पूरा फील नहीं होगा। और पूरा फील भी हो गया तो भैया झूठ मूठ का होगा, क्योंकि एक फादर क्या है पूरी इनकम नहीं बताएगा अपने बेटे को। यस और नो? बेटी को शायद बता दे, क्यों स्मृति? आयुषी गर्ल्स एम आई राइट?
अच्छा, सर ये डिपेंड्स। डिपेंड्स। आप है ना घुमा फिरा के पूछिएगा आयुषी जी, ठीक है ना। ये पहला बैच है मेरा IDWM का जहां पर गर्ल्स कम है, अदरवाइज क्या है गर्ल्स की मेजोरिटी, मतलब ऑनेस्टली 50-50 रहा है मेरे पिछले कई कई बैचेस से पढ़ा रहा हूँ। बट यू आर सेइंग यार 30 स्टूडेंट्स, कुछ ऐसा बोला था आपने 30? ग्रुप में तो लेकिन आज 40 तो उसमें से काफी फैकल्टी ही है, और शुरू में 30 ही बताया था किसी ने तो। अच्छा, ग्रुप में कितने हैं? 40 है? 43। 43 वो उसमें स्टाफ भी होगा यार या ओनली स्टूडेंट्स है? नहीं नहीं, आपने स्टाफ मेंबर चेक कर लिया? स्टाफ स्टाफ को इंक्लूडिंग, हाँ मतलब हाँ, वो 8-10 जो ना स्टाफ है, 8-10 स्टाफ है, फैकल्टी है उसमें, तो इसलिए आपको पता नहीं चल पाया होगा। करीबन 10-12 नंबर क्या होता है, फैकल्टी कोऑर्डिनेटर वगैरह सारे ही होते हैं उसमें। चलेगा। तो मैंने आपको क्या बोला था सर कि भाई यस यू नीड टू व्हाट्सएप मी, ठीक है। मैं अब अगेन आई एम गोइंग टू दोज हु हैव जॉइंड मी लेट, तो मैं यहाँ पर क्या है अपना नंबर लिख रहा हूँ मैं। यार बताऊं क्या हो गया, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई, देखिएगा मैं PPT में भी नहीं लिख पा रहा हूँ, यानी वर्ड में भी नहीं डाल पा रहा हूँ मैं, PPT में भी नहीं डाल पा रहा हूँ, और एक्सेल तो खुल ही नहीं रहा है। शुरू में मैंने लिखा, अच्छा ऑलरेडी है मेरी एक स्लाइड है जिसमें स्टूडेंट दोज हु जॉइंड मी लेट, joined us late, this is my number, right? Save my number and you need to WhatsApp me today. Today नहीं, within 30 minutes. Within 30 minutes, name, your batch, your city you belong to, date of birth. Here you can miss if you want to miss. Skip, you can say. Work experience, if you have any work experience, you work somewhere, right? Is it okay, guys? Yes sir. I hope you must have, liked the way I'm, interacting. Yes or no यार, गर्दन हिला दो या ऐसे कर दो नो सर। जी। हाँ, सो मेरी एक रिक्वेस्ट है, यू ऑल आर अलाउड टू स्पीक at any point of time, you no need to take permission, right? Even you should not raise your hand also. Sometimes I'm not looking at everyone, try to understand, I have to look at PPT participants also. Can you believe मेरी स्क्रीन इतनी ज्यादा होती है, मैस अप students face, participants, chat box and PPT, and sometimes that kind of वो वाला भी जिसमें क्या है I can write something, वो भी लिखा रहता है, बहुत सारी चीजें खुली होती है। I cannot see your hand, so you can speak at any point of time, and please cooperate with me. I feel really bad when I ask you and nobody replies. देखिएगा मैं भी एक स्टूडेंट था, कभी एक स्टूडेंट क्या है को टीचर बोलता था ना, जैसे मैं ना जितेश कुमार, तो हम एकदम से रिप्लाई करते थे यस सर, लेकिन मेरे को इस बात से काफी उम्मीद है, इफ आई से जितेश कुमार तो अनम्यूट और एकदम से बोलेगा यस सर। इफ आई से जितेश हैव यू अंडरस्टूड, इमीडिएटली यस सर। कैन आई एक्सपेक्ट यार, दिस इज द बेसिक, राइट गाइस? यस सर। हाँ, बेसिक थिंग है, बेसिक एटिकेट्स है, वो प्लीज फॉलो, क्योंकि क्या है आई एम एक्सपेक्टिंग वेरी गुड रेस्पॉन्स फ्रॉम दिस बैच। चलिएगा गाइस, थैंक यू वेरी मच, सबको नमस्कार, कल मिलते हैं। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच, बाय Thank you, एवरीवन, sir. बाय, वेलकम Thank जी, you, sir. वेलकम, थैंक यू सर। वेलकम जी, वेलकम, बाय एवरीवन, थैंक यू सर। वेलकम।